My studies, my schooling and my college has been in Chhattisgarh, has been done in Chhattisgarh. With me, they were all very well spoken. They used to speak in English. तो उनसे बात करने में भी मुझे तकलीफ होती थी। तो ज्योग्राफी टीचर थी, उन्होंने मुझे मौका दिया कि तुम पढ़ाओ बाकी लड़कियों को। तो सिर्फ 2-3 क्लासेस लिए मैंने वहाँ पे, ओशियानोग्राफी और जो जियोग्राफी के जो थोड़े बहुत क्लासेस होते हैं उसमें। लेकिन ये नहीं किया तो मैं फेल हो जाऊंगी। तो वो था मेरा कि एक भी दिन का नहीं किया तो मैं फेल हो जाऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मेंटर्स ज्ञान। आप लोगों के बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि यूपीएससी के टॉपर्स लाइए, बताइए कि कैसे छत्तीसगढ़ में रहते हुए भी इस एग्ज़ाम को क्रैक किया जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही मैम बैठी हुई हैं, टॉपर बैठी हुई हैं, जिन्होंने खुद इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया और आज वो आपके साथ अपनी पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करेंगी। सब कुछ बताएंगे कि कैसे इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे लोग क्रैक करते हैं, सारी सीक्रेट्स आप लोगों को रिवील होंगे। बट फर्स्ट लेट्स वेलकम मैम। मैम का नाम है नेहा ब्याडवाल। उन्होंने यूपीएससी 2023 क्रैक किया हुआ है एंड उनसे आज हम लोग उनके सारे स्ट्रगल की स्टोरीज को जानने की, कैसे एक एस्पिरेंट एक ऑफिसर बनता है। लेट्स वेलकम मैम। हेलो मैम, कैसे हैं आप? Hello. Thank you for the introduction and thank you for inviting me here. You know, this is such a golden opportunity for me to talk to everybody and to be in a conversation with you. Thank you for We'd that. really like to know you कि ये जानना है कि Sure. कैसे आपने शुरू किया, कहाँ से आप हैं, हर एक चीज़ बेसिक। पर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। So Neha Byadwal is my name. I'm 24 years old, and sir, I was born in Jaipur, but sir, most of my studies, my schooling and my college has been in Chhattisgarh, has been done in Chhattisgarh, and sir, सब तो यहीं से हुआ है, and all of my preparation has been done from here only, and sir, in this preparation, my college, my parents, my family, and my mentors played a very important role in motivating me, in telling me what's right or what was wrong, in stopping me from doing something wrong, making mistakes, and most importantly for boosting my confidence in an unparalleled manner. So abhi tak I have found nobody in my family, nobody in my close group has ever told me to rethink my decision. Never. So this is my fourth attempt. This was my fourth attempt. I cracked it in fourth attempt. So first and second attempt I couldn't even clear the pre. But sir, in the second attempt, doubts creeped in within me. But the people around me, they were as stable as a rock. You know, you will do it. You have to do it. There's this one thing which my father says, my papa and chacha says. They say, कभी भी निकलेगी. 5 साल बाद निकले, 3 साल बाद निकले, 4 साल बाद निकले, तो निकलेगी जरूर. They had that kind of confidence in me. So, you need to, that gives you a kind of confidence, that gives you a kind of motivation which makes you work really hard. Sacrifice on a daily basis, fight with yourself, you have to do this. And अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे बट नहीं जानते कि कितना टाइम लगेगा, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और ये एग्जाम आपके लिए है भी या नहीं, तो हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं यूपीएससी मेंटरशिप प्रोग्राम, जहां हमारे एक्सपर्ट्स आपको हेल्प करेंगे विद द स्ट्रैटेजी, मास्टर प्लान एंड हेल्प यू टू ओवरकम योर फियर। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, जहां पर आप हमारे एक्सपर्ट से बात करके सॉल्व कर पाएंगे अपने सारे डाउट। तो जल्दी से मैसेज करें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर और अपने स्लॉट्स को बुक करें। So was it so easy? Like कैसे आपने पहली बार तो ये सोचा कैसे कि आप इस एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करेंगे? Yes, sir. So the first, there have been multiple reasons. So the first reason would be that I have seen the process from the beginning. My father is a bureaucrat. My father is an IRS officer. So I've seen his journey, and I have seen his working style. I have seen the way he works and the way he is, selfless and wants to help other people. So sir, and there's this different opportunities that all these other services provide. IRS is different, IAS is different, all of these other services, but it gives you an opportunity to work for others, to be a beacon of hope for others, to do something concrete on a ground level. So second, I have been a very empathetic person since the beginning, so my family calls me their the philosopher come guide come that
the person who counsels you, you know, anybody Every family has that. anybody has a problem, they come to me. So so that has been, I'm very empathetic. So, you know, people, I'll tell you one incident from my college. I didn't have many, I talked to many people, but I didn't have many friends. The most beautiful conversations I had in my college was with the janitor we had in Yeah. our college. Yes, sir. I'll mention that कि यहाँ पे बहुत सारे हिंदी ऑडियंस है, तो जो साफ सफाई करने वाले लोग होते हैं यस वो लोग। यस 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 तो उनके साथ जो वो मेरे साथ बैठती थी, एक एक घंटे हमने बात की उनके साथ बैठ के. तो सर आई फेल्ट फॉर हर, यू नो. So all of these things always, and sir, I find it very easy to have conversations with people, no matter where they come from. I can have conversations with anybody. So sir, these conversations flew so easily with them, and I wanted to know more about them. But you know, that very point felt helpless. वो मुझे बताते थे कि हमारा बेटा पढ़ नहीं पा रहा है, या फिर हम ये नहीं कर पा रहे हैं. So there's a feeling of helplessness you get, you know, when you want to do something for somebody, but you don't have the resources to. So that has also been one of the motivations. And sir, thirdly, I have been privileged enough to, you know, get that environment where you get constant motivation, constant push from your family that no, this is what you're made for, this is what you have to do. So there was no other option for me basically from the beginning. ये था कि आपको जमीन पे नहीं गिरना है, कि आपको ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करना है, कुछ तो करना है. और there's this one narrative that goes on in my house कि कोई भी जॉब छोटी बड़ी नहीं होती. Every job is good, but we need to aim for the one which makes us work the most, you know, work the most for people, even for ourselves. This gives so many opportunities to develop yourselves. I have been all for, you know, improving myself, कि कैसे ना कैसे अपने आप में कमी निकाल के उसको ठीक कर देना है. बस इंग्लिश नहीं आती थी, सीखना है उसको कैसे भी. बोलना नहीं आता है, सीखना है उसको कैसे भी. लिखना नहीं आ रहा है, उसको सीखना है कैसे भी करके. ऐसे में आपका व्यू नहीं बन पा रहा है, उसको सीखना है कैसे भी. कॉपी करके सीखो, दूसरों को देख के सीखो, किसी और से सीखो, कोई भी तरीका निकालो. ऑनलाइन सीखो, किसी से बात करके सीखो. बट सर, आई हैव ऑलवेज बिन फॉर द इम्प्रूवमेंट. अभी भी सर, I just look forward to the improvement that will be in my personality. So that has also been one of the factors which I thought, you know, this arena of work would be so much beneficial for me, for my personality. You know, when people meet me, they get impressed by my personality, ki such giving personality she has, such confident personality she has, such well spoken she is, so well spoken she is. So these all have been my motivations. And sir, okay. And were you always good at this? Like you were always good at your studies? पहले तो आप अपना मतलब स्टडी एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए कि कहाँ से आपने किया है और सब कुछ कैसे कंप्लीट. तो सर, मैं बेसिक जो इनिशियल एजुकेशन मेरा हुआ है वो जयपुर से हुआ है. जो इनिशियल एजुकेशन मतलब द प्राइमरी एजुकेशन, वेयर यू नो यू learn the alphabets, where you learn how to make the words, how to spell the words, how to pronounce the words. Till which class? Sir, वो जो प्राइमरी बेसिकली प्राइमरी जो पहला दूसरा साल होता है एकदम, तो 3 साल की मैं स्कूल चली गई थी. सो सर, आई ऑलवेज लव्ड स्कूल बेसिकली. सो सर, माय मदर टेल्स मी दैट every kid cries when he or she goes to school. I was really happy. Really happy. I didn't want to come back to school. I hated the weekends. I loved school. This is the quality. जो भी लोग यहाँ देख रहे हैं वो ये जान लो कि स्कूल से प्यार करो. तो सर, वहाँ पे तो आई यूज्ड टू स्टे विद माय बाबा एंड जीजी, मेरे दादा दादी. तो राजस्थानी में बात होती थी, थोड़ी बहुत हिंदी में बात होती थी. फिर उसके बाद भोपाल में एक स्कूल में गए हम, किड्जी हाई नाम था उस स्कूल का. तो वहाँ पे 1st to 5th मैंने पढ़ाई की. सो इट वाज अ इंग्लिश मीडियम स्कूल, प्रॉपर इंग्लिश मीडियम स्कूल. सर, वहाँ पे अचानक से शौक लगा कि जो बुक्स में लिखा है वो समझ ही नहीं आ रहा है. साइंस में अचानक से पैराग्राफ वाले आंसर्स आ गए हैं, आप तो एक लाइन नहीं समझ पा रहे हो. ERM नहीं पता है आपको उस समय. तारे जमीन पर वाला सर, you made me remember this one incident where सर स्कूल में तारे जमीन पर दिखाई जा रही थी. एंड पापा भी थे कि आप देखने जाएंगे हम तारे जमीन पर. इट्स अ वेरी, आई डिडंट वांट देम टू सी द मूवी. I didn't want to go with them to see the movie because I thought that movie was on me.
I would be very, I was really very embarrassed when I, saw that movie कि ये तो मैं हूँ। not dyslexic, but समझने में जो टीचर्स बोल रहे हैं वो समझ ही नहीं आ रहा था उसमें। Sir, I was 5-6 years old, 5-6-7। तो वहाँ पे 5th-6th पढ़ा मैंने उस स्कूल में। तो सर ये तारे ज़मीन पर was a real nightmare for me। तो वहाँ पे and sir the other students who used to study with me, they were all very well spoken, they used to speak in English। तो उनसे बात करने में भी मुझे तकलीफ होती थी। तो वहाँ पे I failed in the half yearlies of my 5th standard। तो सर वो एकदम थोड़ा शॉकिंग था कि ये कैसे अचानक से फेल होने लगे हैं। तो सर इट वाज द लैंग्वेज बैरियर, बट सर आई एम सो थैंकफुल बिकॉज ऑफ दैट वेरी एक्सपीरियंस। मुझे एक चीज, वो जो लड़ाकू बिहेवियर था ना, वो स्टार्टिंग से था। गिव अप नहीं करने का तो स्टार्टिंग से था कि गिव अप नहीं करना है, लड़ना है, एकदम सीखना है इसको। भाषा ही तो है। अब अगर इतनी इम्पोर्टेंस मिल रही है उस भाषा को तो हम सीख लेंगे उसको। तो कैसे कैसे करके आई मेड अ प्लेस फॉर माई सेल्फ। लेकिन वो 5th-6th में तो इम्प्रूव नहीं हुआ। फिर 7th में मैं रायपुर आई, होली हार्ट्स वाज माय स्कूल। तो सर वहाँ पे इट्स अ वेरी हम्बल स्कूल। वहाँ पे हर तरह के बच्चे थे। सम वर वेरी स्टूडियस, सम वर द टॉपर्स, सम वर एवरेज स्टूडेंट्स। तो आई वाज अमंग द एवरेज स्टूडेंट। बस सर वहाँ पे जो वहाँ मेहनत की थी 5th-6th में, जो देखा था कि यार सीखना है थोड़ा सा, तो वो यहाँ आके थोड़ा सा दिखने लगा कि नहीं थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। फिर हाथ उठाना चालू किया कि मैम आई विल आंसर द क्वेश्चन, मैम आई विल आस्क मोर क्वेश्चंस। इंग्लिश सब्जेक्ट में एक रुचि मेरी बढ़ी कि सीखना है, बोलना सीखना है। और फिर SST एज अ सब्जेक्ट, वहाँ पे भी काफ़ी मेरा इंटरेस्ट बढ़ा SST में। मैथ्स तो सर तब तक ऐसा था कि दिमाग बंद था एकदम, वो मैथ्स में डब्बा गुल वाला सीन था। बट सर उसमें फिर 9th में आई रिमेम्बर कुछ नहीं समझ में आता था मैथ्स में। बट वन डे माई फादर गॉट अ बिग वाइट बोर्ड, लिविंग रूम में लगाया उसको उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया वहाँ पे। पढ़ाना स्टार्ट किया तो अचानक से चीज़ें समझ में आने लगी, क्वेश्चन सॉल्व होने लगे। फिर इट बिकेम फन, इट रियली बिकेम फन। तो वहाँ से फिर मैथ्स ऑल्सो आई इम्प्रूव मैथमेटिक्स एज वेल। तो वहाँ पे एक बना कि सब सब्जेक्ट में आप एवरेज स्टूडेंट हो गए हो। तो सर आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट हु स्कोर्ड बिटवीन 80 to 85 ऑल माई स्कूल लाइफ। फिर से 11th और 12th में आए। 11th DPS कोरबा से हुआ और 12th DPS बिलासपुर से हुआ। उसमें सर आई गॉट वेरी डिस्ट्रैक्टेड टीनेज स्टफ। तो सर उसमें वहाँ पे था कि 11th में तो सर आई डोंट इवन रिमेम्बर माय परसेंटेज, इट मस्ट हैव बीन सो बैड। 12th में 11th ऑलमोस्ट सबका ही खराब होता है, सबका खराब। और सर उसमें एक्चुअली मैथ्स था मेरे पास। 11th-12th में कॉमर्स विद मैथ सब्जेक्ट्स थे मेरे पास। तो उसमें बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, तो सर वो कॉमर्स विद मैथ्स लेने का भी पॉइंट ये था कि जाना तो था, मतलब पापा के दिमाग में, मतलब मेरे पेरेंट्स के दिमाग में ऑलरेडी था कि सिविल सर्विसेज ट्राई करवाएंगे इसको। तो उसमें आर्ट्स का उतना अच्छा नहीं है अभी भी छत्तीसगढ़ में। आर्ट्स की पढ़ाई स्कूल्स में उतनी अच्छी अभी अभी इम्प्रूव हो रही है। हमारे ये 10 साल पहले की बात है, अभी काफी इम्प्रूव हो चुकी है। इम्प्रूवमेंट इन द सेंस ऑफ सिविल सर्विसेज कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड पढ़ाया जाए। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट सर, सब्जेक्ट ह्यूमैनिटी। सो सर हम जब कोरबा में थे तो वहाँ पे थे ही नहीं सब्जेक्ट्स। वहाँ था ही, मैं खुद DPS कोरबा का हूँ, तो दे जस्ट फोकस ऑन वो कंप्यूटर, मतलब बेसिकली साइंस फील्ड हो तो यू आर ग्रेट, एंड इधर वाले में उतना दे वोंट गिव दैट इम्पोर्टेंस टू इट। तो उसमें भी ये था कि चलो हमको इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट तो मिल रहा है क्योंकि इकोनॉमिक्स आगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दैट्स व्हाई बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड ऑल ऑफ दैट। और उसके साथ मैथमेटिक्स वाज माय एडिशनल सब्जेक्ट, तो कॉमर्स विद मैथ्स। तो 12th में आके थोड़ा सा ऐसे लगा कि यार अब परसेंटेज तो लानी है, यू हैव टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ये तो गलत हो रहा है थोड़ा सा। वर्क रियली हार्ड, मतलब और सर स्टार्टिंग से ही, मतलब मुझे याद है मेरी 12th की तैयारी में चाचा जो उस टाइम काफ़ी मुश्किल पोस्ट में थे, मेरे साथ बैठ के पढ़ाते थे मुझे, सर पे बैठ के एकदम। तो वो वहाँ करके तो बिजनेस स्टडीज एंड ऑल ऑफ दोज थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स आई स्कोर रियली नाइसली। 90 to 95 आई स्कोर्ड एंड देन मैथ्स में कम रह गया मेरा, तो उसमें भी द स्कोर रिमेन्ड 80 to 85 ही रहा। तो थ्रू आउट स्कूलिंग, जब से थोड़ा लाइन पे आई मेरी एजुकेशन,
तब से स्कोर मेरा 80 to 85 ही रहा है. तो सर आई हैव नॉट बीन अ टॉपर, आई हैव बीन अ वेरी एवरेज स्टूडेंट. बट सर द कॉलेज वाज अ यू टर्न. द कॉलेज आई वेंट टू डिग्री गर्ल्स कॉलेज विच इज इन कालीबाड़ी चौक. उसमें मैं गई तो वहाँ पे इनिशियली आई डिडंट वांट टू गो टू दैट कॉलेज बिकॉज इट वाज नॉट माय डिसीजन. So initially I was not in favor of that decision, but I went to that college. So first year जब मैंने history, economics, geography, I had BA program in which the subjects I had were history, economics and geography. तो first year जब result आया, तो I topped the college. I had scored the most marks that anybody had ever scored in that college. Yes. उसमें and फिर पापा and my parents had also done the same thing. उन्होंने भी graduation वैसे ही किया था. Even they hadn't scored those kind of marks. So इतने marks आ गए हैं. So it was like कि आप कॉलेज में पढ़ते थे बहुत सारा कि it was a back knowledge और या नहीं सर कॉलेज लास्ट स्टेज पूरा कॉलेज में नहीं सर पूरा कॉलेज में. मतलब आप वो इंजीनियरिंग वाले टाइप के नहीं थे कि एक दिन पहले पढ़ के नहीं सर वैसे नहीं थे. कॉलेज में तो प्रॉपर पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और उसमें था कि करना है और उसमें थोड़ा करना है एज इन कॉलेज में अच्छा करना है कि कॉलेज में भी अच्छा करना है और सिविल सर्विसेज का एक बेस बनाना है. ये था. ऐसा नहीं था कि अभी सिविल सर्विसेज करना है, पर ये था कि एक बेस बन जाना चाहिए. यू हैव द सब्जेक्ट हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, सो यू डू इट. मतलब अभी आपके तैयार हो जाने चाहिए बेसिकली. तो उसमें तो सर मार्क्स जब आए तो देन आफ्टर दैट रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर girls started coming up to me. डिग्री गर्ल्स कॉलेज में सर आप डिग्री गर्ल्स कॉलेज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि गर्ल्स कम फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. some are planning to get married very soon, some are planning, they have dreams, they have aims, but some have the resources to do that, some don't, unfortunately. So sir, everybody is it's such an mixed kind of culture there. So there girls started coming up to me कि दीदी तैयारी कैसे करें, कैसे हम नोट्स बनाएं, कहाँ से पढ़ें. और सर बुक्स भी उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहती हैं यहाँ पे कि आप कैसे पढ़ोगे. और सर आई वाज एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट देयर, तो हिंदी मीडियम वाली जो छात्राएं थी वो भी मेरे पास आती थी. वो कहती थी कि दी हम कैसे तैयारी करें, 1 वीक सीरीज के अलावा भी पढ़ते हैं क्या. तो फिर मैं उनको बताया 1 वीक सीरीज से नहीं पढ़ते हैं, आप आओ, आप किताबें मैं बताऊंगी आपको, उन किताबों से ही हम पढ़ेंगे और थोड़े बहुत नोट्स बनाओ. एंड देन सर द पैटर्न इन विच द एग्जाम इज टेकन, तो सर उसमें 5 क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं. तो बड़े क्वेश्चन लिखने का एक एक्यूमेंट बन जाता है आपका, ऐसे टाइप तो क्वेश्चंस लिखे जाते हैं वहाँ पे. तो उसमें यू कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस वैसे, तो वो भी मैं उनको बताती थी. तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग अप टू यू, सो यू हैव टू कीप अप विद इट. तब तक तो हम समझते ही नहीं थे कि हम किसी को गाइड करने के भी लायक हैं, कि बिल्कुल कि हम किसको क्या बताएंगे, कि who will ask me anything. But then and the teachers there, sir, the professors there, my geography teacher, my history teacher, बहुत सारे क्लासेस तो मैं नहीं अटेंड कर पाई थी वहाँ पे, लेकिन जितने करते थे उसमें मेरी जो ज्योग्राफी टीचर थी उन्होंने मुझे मौका दिया कि तुम पढ़ाओ बाकी लड़कियों को. तो सर 2-3 क्लासेस लिए मैंने वहाँ पे, ओशियानोग्राफी और जो जियोग्राफी के जो थोड़े बहुत क्लासेस होते हैं उसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उस पर मैंने वो बनाया, स्लाइड बनाई और सबको बताया उसमें. that gives you a kind of confidence which pushes you forward. फिर फर्स्ट ईयर में ऐसा था, तो सेकेंड थर्ड ईयर तक आई हैड टू मेंटेन इट. तो सर देयर ऑल्सो ग्रेजुएशन में 78% तक पहुंचना ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में इट्स कंसिडर्ड अ वेरी बिग फीट. तो सर आई गॉट इट एंड देन I completed my graduation when I was 18 years old. 18. Yeah, so I completed it really early. I want to give you an applause for this कि आप सब लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि मैम के पास सारे रिसोर्सेज थे और वो चाहती तो बाहर जाके भी तैयारी कर सकती थी, अपने कॉलेज को कर सकती थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी जा सकती थी, या जो भी आप जिसको देखते हैं कि मैक्सिमम जहाँ पर से सिविल सर्विस निकलते हैं, तैयारी करते हैं, अगर वो कॉमर्स वाले या आर्ट्स वाले फील्ड में जाते हैं. बट शी चोज टू बी इन रायपुर छत्तीसगढ़ और वहाँ पर रह के. तो अगर आप इस भ्रम में हैं कि सिर्फ बाहर जाने से सिविल सर्विसेज निकलता है, तो शी इज़ एन एग्जाम्पल फॉर दैट कि आप एक्चुअल में यहाँ पर रह के भी यहाँ पर के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके और उसको इम्प्रूव करके आप कर सकते हैं. एंड उसी पे बातें डिस्कशन होंगी कि
हाउ इज इट पॉसिबल? तो पर पहले तो आप अपना सॉरी फॉर इट सर, इट्स फाइन सर। उसमें भी मतलब आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट हियर sir. It was not my decision, but sir, there's this narrative that goes on in my house where, you know, there's this quote that everybody speaks in my house ki, as I told you earlier, decisions are not right or wrong, you have to make those decisions right. अब आपके लिए आपसे प्यार करने वालों ने जो एक डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया है. दे हैव द ट्रस्ट कि यहाँ रह के भी इसका हो सकता है. तो सर उसको सही प्रूव, स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्ट्रस्ट रहा मेरा, लेकिन उसको सही प्रूव करने के लिए जब मैंने देखा तो यहाँ इस कॉलेज से मैंने डिबेट कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया. आई लेड माई कॉलेज एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस एंड नॉट जस्ट इन एजुकेशनल थिंग्स सर, एवरीथिंग. कोई मैंने किसी में खुद फ्रेशर्स एंड ऑल ऑफ दीज यू नो इवेंट्स मैंने खुद कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, बट आई वाज अमंग द वंस ऑन द स्टेज हु यूज्ड टू यू नो conduct all those events, you know, compare all those events. So that gives you a kind of confidence कि नहीं, यहाँ से भी I can gather a lot. तो सर मेरा सारा कॉन्फिडेंस तो यहीं से गैदर हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने लड़ झगड़ के मैंने बोला कि मुझे दिल्ली में कोचिंग करनी है. तो सर मैं जब 19 साल की थी, 18-19 साल की थी, तो सर तब मुझे चाचा मेरे दिल्ली लेकर गए और 1 साल की कोचिंग की मैंने वहाँ बाजीराम एंड रवि से. Sir, I would not say it was not fruitful, but sir, it told me what were the rights and wrongs. और ये मुझे वहाँ जाके रियलाइज हुआ कि जो पापा बोल रहे थे वो सही था. I need to stay in that periphery to be able to do. वहाँ तो आप एकदम हताश निराश हो जाओगे, because everybody who comes from such good background, such good educational feats, they're all there, you know. They're preparing, they're working hard, they're giving in hours. You kind of get depressed seeing all of them. But sir, last में आप किसी भी कैंडिडेट से बात करेंगे जब जिन्होंने यूपीएससी किया है, तो सर लास्ट में वो यही बोलेंगे कि सर रिजल्ट तो उससे आया है जो हमने कमरे में बैठ के किया, जो हमने अपनी स्ट्रैटेजी बना के किया है. बिकॉज सर वो आपको ये बता सकते हैं कि कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सी किताबें नहीं पढ़नी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कितना करना है. बट सर उसमें आपका ही मॉडरेशन चलेगा. उसमें अगर आप किसी और को ये डिसाइड करने दोगे कि तुम नहीं 12 घंटे पढ़ो, नहीं तुम ये सब्जेक्ट पढ़ो, नहीं तुम वो सब्जेक्ट मत पढ़ो, तुम इस सब्जेक्ट को ज़्यादा करो, अभी ये ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड नहीं चल रहा है, तो सर आपको खुद के ट्रेंड्स तो खुद ही ढूंढने पड़ेंगे, आपको खुद की स्ट्रैटेजी तो खुद ही बनानी पड़ेगी. एंड देन there are so many people here, even in Chhattisgarh, who are willing to give you guidance. And of course sir, ये जो I thank all the coaching institutes because they make everything available to you. Coaching institutes ही हैं जिनसे हमको toppers की copies देखने को मिलती हैं. So I always believe कि you know when somebody tops the exam, it's when their stars align. But sir, there was one topper named Shruti Sharma ma'am. Yeah. Sir उनकी copies को मैंने खाया है, पिया है. लिटरली मतलब मैं रोज उनकी कॉपीज देखी है, मैंने कॉपी किए हैं उनके आंसर्स, स्पेशली द वे शी राइट्स शी रोट हर एसेज. सर उसमें मतलब मुझे ऐसा लगता था कि इनके स्टार्स अलाइन नहीं किए हैं. शी वाज मेड फॉर इट, शी वाज मेड टू टॉप द एग्जामिनेशन बिकॉज शी हैड एवरीथिंग अंडर कंट्रोल. शी नोज व्हाट शी इज डूइंग. शी रोट हर एसेज इन एन आर्च. सर ऐसे कब वो शुरू हुआ कब वो खत्म हुआ पता ही नहीं चलेगा. सो देयर इज एन एग्जांपल, जैसे एक एनवायरनमेंट के ऊपर उन्होंने ऐसे लिखा था जिसमें स्टार्ट ऐसे हुआ था कि द प्रेसिडेंट्स ऑफ तुवालू एंड पलाऊ, there was a video which went on in UNGA, the conference, where the presidents of Tuvalu and Palau had their feet knee deep in water. मतलब countries में floods आ गए हैं. And when she ended the essay, it ended like the conclusion, जो last line थी कि अगर हम improve नहीं करेंगे, if we don't take these things seriously, we will be the ones who will be with the presidents of Tuvalu and Palau crying for help. एक पूरा आर्च. wow. You know, another example, जैसे उन्होंने start किया from the example of Gargi and Yagnavalkar, जिसमें गार्गी ने याग्नवल्क्य से क्वेश्चन पूछा भरी सभा में. She started with that. It was about women empowerment. फिर जब वो एंड हुआ, वो एंड ऐसे हुआ जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर गार्गी आज होती, if she were here today, वो हमसे ये सवाल पूछती कि तुम क्या कर रहे हो.
क्या जो तुम कर रहे हो वो काफी है, यू नो देयर इज एन आर्ट। No, I'm wondering कि ये तो like it's an answer जो स्टोरी टेलिंग के फॉर्मेट में। सर ऑफ कोर्स, तो ये यू नो यू हैव इट, और ये मैंने दिल्ली जाके नहीं सीखा है, ये मैंने यहीं अपने जो इंटरनेट पे उनकी आंसर शीट्स देख के सीखा है। और सर उसमें फिर जैसे मैंने जो उसमें अपना जो इनकलकेट किया, तो उसमें सर आई हैव अ नैक फॉर यू नो लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस, and of course I learn songs in different languages. I can sing in 6 different languages, certain songs. And sir उसमें जो quotes होते हैं, उसमें जो कोई भी जैसे especially the quotes that prime minister and honorable prime minister and president use. तो सर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक असेंबली में कहा था, हमारे देश ने, इंडिया ने दुनिया को बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं। वाह। This is such a beautiful thing, and this is such a beautiful thing to write. So sir, I used to write this as my introduction and end somewhere like that, you know. तो उसमें फिर यादु मोरे येवुरम केलेर, वो मतलब अलग अलग उनकी जो स्पीचेस होती हैं वो बहुत बहुत ही इंट्रिकेट होती हैं, whichever state he'll go to. So sir, it would be so you can, aspirants can derive from the speeches that of presidents and prime minister, honorable prime minister. So president ने जो अपने जो honorable president ने जो अपना speech दिया था, उसमें उन्होंने एक quote बोला था, उसमें संस्कृत ये परित्राणाय साधुनाम, पृथ्वी स्योन मस्तु, कर्मसु कौशलम, जो कि IAS का जो मोटो है। सो ऑल ऑफ दीज एथिक्स के पेपर में और ऐसे के पेपर में ये बहुत काम आते हैं। सो आई यूज्ड टू जॉट देम डाउन, यू नो, पोएम्स, ऑल द गुड पोएम्स, ऑल द अभी जो एक मैं आपको बताऊंगी, वो तो मेरी जिंदगी का मोटो है, वो पोएम, वो मैं लिखती भी हूँ और वो मैं बोलती भी हूँ हमेशा। और उसमें सर ये तो था जो मैंने ऑनलाइन सीखा। उसमें फिर सर अंकिता मैम जो है, अंकिता दी जो है मेरी, उन्होंने मुझे ऐसे में, फॉर एग्जाम्पल देयर वाज दिस ऐसे, The hand that moves the cradle rules the world. एक हाथ जो पालने को हिलाता है वही देश को चलाता है। अब इससे सीधा सीधा मतलब ये निकल रहा है कि इट्स टॉकिंग अबाउट द मदरहुड, माओं के बारे में बात है कि माएं जैसे अपने बच्चों को ग्रूम करती हैं, संस्कार देती हैं, वो आगे जाके काफी सक्सेसफुल होते हैं। तो सर उन्होंने मुझे बोला इस पे ऐसे लिखो, मैंने ऐसे लिखा, मैंने पूरा एक ही चीज पे ऐसे लिखा कि हाउ women play the role as a mother. That's how I interpreted that one. उन्होंने मुझे बोला क्या लिखा है तुमने? This is something which you just have wrote in one page of your essay. फिर उन्होंने मुझे बोला कि जो हाथ पालने को हिलाता है वो एक हाथ से पालना हिला सकता है और एक हाथ से वो सीधा देश भी चला सकता है। Wow. There are prime ministers who are keeping their babies in their hands while sitting in the parliament making decisions, making big decisions. तो वो खुद भी not via proxy, वो खुद भी हो सकता है। फिर ये जो पहला पहलू, दूसरा पहलू, ये जो पालना हिलाने वाला हाथ है, not necessarily a mother, फादर भी हो सकते हैं, आपके दादी भी हो सकते हैं, आपके दादा भी हो सकते हैं। थर्ड, ये जो पालने को जो ये जो हाथ है, जिस हाथ की हम बात कर रहे हैं, वो आपके टीचर भी हो सकते हैं, वो गुरु भी हो सकते हैं, वो कोई जो आपको गाइड करने वाला आपको मिला है वो भी हो सकता है, आपके जो फर्स्ट सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपकी स्कूलिंग, आपका कॉलेज, वो भी हो सकता है। फिर उसमें उन्होंने एक चीज़ मुझे सिखाई कि आपको क्वेश्चन भी करना है, जो उन्होंने पूछा है उसको क्वेश्चन भी करना है कि क्या ज़रूरी है कि यही हाथ रूल करेगा। ऑल ऑफ दो शेड्स, तो शी टॉट मी ऑल ऑफ दो शेड्स कि आप एक चीज़ को कितने अलग अलग तरीके से देख सकते हो, कितने अलग अलग तरीके से आप उसको हाँ बोल सकते हो, ना बोल सकते हो, और फिर फाइनली आप एक कंक्लूजन बना सकते हो जिसमें आपने उसको बहुत ही प्यारे तरीके से कंक्लूड किया है। अलॉन्ग विद दिस मेकिंग एन आर्च दैट आई गॉट थ्रू द टॉपर्स कॉपी, श्रुति शर्मा मैम्स कॉपी, कि आप ऐसा लगे पढ़ने वाले को कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया है वहीं से आपने ख़त्म किया है। तो उसमें वी वर ऑन की प्रिपेयरिंग फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो ऑफकोर्स मेंटरशिप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अच्छे मेंटर्स मिलें, आपको अच्छे मार्गदर्शक मिलें जो आपको सही रास्ता दिखाएं, लेकिन उसमें भी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आपका खुद का एफर्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
तो सर उसमें देयर दिस, मेरे घर में सब मुझे नन्ही चीटी बोलते हैं, अरे तू नन्ही चीटी है, क्यों? बिकॉज देयर इज दिस पोएम नन्ही चीटी। तो सर इट गोज ऑन लाइक दिस, नन्ही चीटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर इसमें देयर इज अनदर, असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम, बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर इट्स ऑल अबाउट परसिवियरेंस, नो यू जस्ट डोंट गिव अप। और सर उसमें देयर इज दिस अनदर नैरेटिव व्हिच इज गोइंग ऑन, जिसमें मैं बताऊंगी इसमें कि सर मैंने ये जो देखा है कि अरे हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम कुछ और नहीं कर सकते। तो सर मुझे उसमें लगता है कि दिस एग्जाम इज वेरी आर्बिट्ररी। सर उसमें लक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर आई बिलीव दैट आई एम वेरी लकी सर, बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट इट। बट सर उसमें हमेशा एक बिलीफ रहा है मेरा खुद का कि सर बीइंग अ गर्ल एंड सर हमारे पूरे, जैसे हम मुझे पापा बताते हैं कि हमारा नॉट इवन आवर विलेज, हमारे पूरे कुनबे में I am the first girl who cracked not just this examination, class 1 examination, the class 1 job I got it. तो सर उसमें it was not just this सर, इससे पहले यूपीएससी के साथ साथ I have appeared for many SSCs. I had a job. तो सर ऑडिट एंड अकाउंट्स में I was posted as an auditor. अब सर वो जॉब हमेशा रहती थी, तो उसमें एक सेफ्टी हमेशा रहती थी कि मुझे कभी ये नहीं था कि यार यूपीएससी में ही आपको एक ऑफिसर ही बनना है और वही बनना है, वो नहीं बनेंगे तो कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं ऐसा नहीं था। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स। कुछ फर्क नहीं पड़ता है आप 30,000 50,000 1 लाख कमा रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। सर द फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, very very important. And sir I've been proud of those jobs as well. I've been really proud of those. And apart from that sir, बहुत सारी, जैसे ये तो एसएससी है, यूपीएससी का जो सीएपीएफ होता है उसमें भी सर आई क्लियर्ड लास्ट टाइम। उसमें एक्चुअली सर मेरा इंटरव्यू का डेट आ गया था तो मैं फिजिकल देने नहीं जा पाई, नॉट दैट कि वो मेरा हो जाता, लेकिन एक्चुअल में कई लोगों का एकदम प्रॉपर ड्रीम होता है कि हाँ ऑफ कोर्स सर। तो उसमें जो यूपीएससी को प्रिपेयर करते हैं तो प्री का जो पेपर होता है वो एक्चुअली प्री और मेंस एक ही दिन में हो जाता है उसमें, तो जो यूपीएससी मेंस जो प्री का तैयारी करते हैं वो उसको कर सकते हैं आराम से। बट सर थिंकिंग कि हम यहीं रहेंगे और हम कहीं और नहीं जाएंगे, दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू, यू नो। यू ऑलवेज हैव समथिंग टू फॉल बैक टू, कि हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम हमारे बलबूते पे हमारे पैर पे खड़े रहेंगे, हमारे पैरों पे खड़े रहेंगे। Then when we have something we'll build on it, you know. नन्ही चीटी दीवार पर चढ़ती रहेगी, you know, it is somewhat like that. But मैम ये बताइए कि जो भी आपके ऑप्शंस रहते हैं, if you are preparing for any exam, जैसे यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो is it like कि आपको कुछ एकदम ही डिफरेंट अपने प्लान बी में रखना चाहिए कि सेम प्लान बीज होने चाहिए जो रिलेटेड है आपके स्टडीज से? सर एक्चुअली इसमें मेरा मानना है कि थोड़ा सा अगर आसपास रहे तो इट्स सेफ, इट्स बेटर, बिकॉज सर ऑल ऑफ दीज एग्जामिनेशंस कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, यू नो। व्हेन यू प्रिपेयर फॉर वन यू ऑटोमेटिकली प्रिपेयर फॉर अनदर। और उसमें सर अभी आई डोंट कम फ्रॉम यू नो वेरी इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर एंड दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड, तो सर उन लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज they leave their entire thing and then they leave their high paying jobs, you know, they sacrifice a lot and then they sit and prepare for this exam, जिसमें उनका basically exposure भी नहीं रहता है, उनको ground zero से एकदम start करना पड़ता है। तो सर but the people who are entirely in the process, मतलब जो मेरे जैसे लोग हैं जिन्होंने humanities based जो लोग रहे हैं, उनके लिए तो मेरा ये suggestion रहेगा कि not just one examination, you need to, you know, appear for other examinations as well, you know, and लक्ष्य एक होना चाहिए आपका, लेकिन उसमें especially for women, financial independence is very important for us, you know. फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पिताजी कितना कमा रहे हैं, वो कितना कम या कितना ज़्यादा कमा रहे हैं, but financial independence give a sort of power to the woman, you know.
अगर उसको शादी करने के लिए फॉर एग्जाम्पल फोर्स किया जा रहा है, तो इफ शी इज अर्निंग ऑन हर ओन, इट गिव्स हर अ सर्टेन काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, अ बूस्ट कि नो, माई लाइफ माई डिसीजन, यू नो, दैट काइंड ऑफ थिंग कि ये मेरा एक पड़ाव है, मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मैं दूसरे पड़ाव पर पहुंचूंगी। तो उसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो फॉर दैट आपके क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा कि आसपास रहने में थोड़ा सा सेफ है, लेकिन उसमें यू नो यू शुड नॉट वेस्ट योर सेल्फ अवे, वो नहीं होना चाहिए सर। दैट इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव बीन फेसिंग इसमें, कि समटाइम्स यू वेस्ट अवे। तो सर मेरा वो कभी भी नहीं रहा है उस टाइप का कि ऐसा था कि यही करना है, पर यू नो द नैरेटिव इन माय हाउस हैज बीन जो भी है, ये जो भी करेगी अच्छा करेगी। तो सर उसमें कभी भी ये नहीं था कि आईएएस बनेगी तो ही सबसे अच्छा करेगी, ये जो भी करेगी अच्छा करेगी, मतलब किसी भी फील्ड में आप चले जाओ आप अच्छा करोगे। तो सर आपके दिमाग में वो हमेशा रहना चाहिए कि दिस एग्जाम इज वेरी आर्बिट्ररी, वेरी आर्बिट्ररी। तो उसमें देयर इज नो सर्टेनिटी, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सर्टेनिटी नहीं है कि यू नो कि सर रिजल्ट के एक दिन पहले लोगों को, जैसे अब मैं लिस्ट के बाहर भी होती तो मुझे दुख होता पर शौक नहीं लगता, रैंक 1 भी होती तो खुशी होती पर शौक नहीं होता। इट्स सो आर्बिट्ररी। लेकिन अब जब हम मेंस पाएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, यू नो द वे द टॉपर्स राइट देयर आंसर्स, इट्स समथिंग, मतलब there is a reason why they are the toppers, there's a reason why they are air 1 air 2 because they have that kind of finesse। तो मुझे तो लगता है कि अभी भी बहुत गुंजाइश है, मतलब I worked really hard sir, actually this was my second mains। तो पिछले मेंस में गलती ये हुई मुझसे कि okay wait we'll start with all your attempts also। हाँ, attempts like also। कब से आपने स्टार्ट किया और सारे अटेम्प्ट्स में क्या क्या हुआ था? So sir 2020 when I was 20, मेरा साल ऐसे ही चलता है, तो it was my first attempt and it was a premature attempt। So sir उसमें I was not very well prepared, तुरंत ग्रेजुएशन खत्म हुआ था और उतनी मेहनत भी नहीं की थी। तो I appeared for the examination and घर पे आते ही पता चल गया था कि पेपर अच्छा नहीं होना है। You know, I exactly remember that day because sir that was my parents' anniversary and you know my father was really hopeful कि he was really hoping, he was really looking forward to this in a very physical manner। हर प्री से पहले, हर इंटरव्यू, हर एक इंटरव्यू से पहले, दोनों मेन से पहले आई दिस बिगिन आई, आंख एकदम स्वोलन हो जाती थी सर। पिछले जो मेरा पिछला मेंस था उससे पहले आई ऑपरेशन। योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, मैं अब सीखूंगी योगा, मैं अभी तक सीख नहीं पाई, उसको कर नहीं पाई बिकॉज यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस फॉर दैट एंड आई डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ पेशेंस। वो पेशेंस वो पेपर सॉल्व करने में और आंसर लिखने में ही चला जाता था, इसमें फिर पेशेंस ही नहीं आता था क्योंकि द ब्रेन ईट्स यू अप, इट कीप्स रनिंग। अरे एक आंसर और ज्यादा लिख लेंगे तो 1 मार्क ज्यादा मिलेगा, एक आंसर और ज्यादा लिख लेंगे तो 1 मार्क ज्यादा मिलेगा। तो सर फर्स्ट अटेम्प्ट वाज दिस। सर सेकंड अटेम्प्ट में आई वाज फुली प्रिपेयर्ड, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, प्री नहीं हुआ क्लियर। तो सर दैट वाज नॉट, मतलब उसमें माय फैमिली वाज नॉट वेरी, मतलब ऑफ कोर्स परेशान थे, लेकिन आई डिडंट नो व्हाट टू डू उस टाइम कि यार ये थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है अब कि नो। लेकिन उसमें भी जो फेज होता है ये मेरा, व्हेन आई सेल्फ क्वेश्चन, व्हेन आई, वो बहुत छोटा होता है मेरा। दिस इज वन ऑफ द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ माय पर्सनालिटी। आई एम ओवरली ऑप्टिमिस्टिक। 5 मिनट में आई जस्ट यू नो थिंक ऑफ अदर थिंग्स, कि तुरंत मैं आगे की चीजों के बारे में सोचना चालू कर देती हूँ कि चलो मैं आधे दिन बहुत दुखी रही, आधे दिन से ही प्लानिंग करने लग गई कि यार ये नहीं किया था मैंने, आई हैव टू डू दिस। दिस वाज समथिंग दैट आई डिड नॉट डू। मैं और सर वो मुझे बाद में पता चला कि वो प्रीलिम्स मेरा 2 मार्क्स के आसपास से छूटा था। तो उसको देख के मुझे लगा कि आई वाज वेरी नियर टू इट, सो माय पाथ वाज राइट, एवरीथिंग वाज राइट, इट जस्ट थोड़ा सा टिक और लगना चाहिए था उसमें। तो सर उसमें मेरी जो प्री की स्ट्रैटेजी थी, जो थर्ड अटेम्प्ट में काम कर गई बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, वो ये थी कि आप ऑफ कोर्स बेसिक्स पूछते हैं लोग कि बुक्स कौन सी पढ़नी है। तो सर एक जगह मैंने सुना था बुक कोई भी अच्छी और बुरी नहीं होती, यू नो। उसमें एक जॉब, आप आंख बंद करके किसी भी एक सब्जेक्ट की बुक पे हाथ रख दो और आप उसका एक पेज पढ़ के उस बुक को खत्म कर दोगे ना अगर, you will gain everything out of it. And the more times you revise it, आपके नोट्स, आपकी बुक्स
अच्छी हूँ बुरी हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आप कितनी बार आप अच्छी 100 चीजें पढ़ो उस वर्सेस आप एक एवरेज चीज को बहुत बार पढ़ो, तो सेकंड वाली चीज विल फेच यू मार्क्स एंड विल फेच यू सक्सेस. सो दैट इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई लर्नड इन माय थर्ड अटेम्प्ट. उसमें सर मॉक टेस्ट क्वेश्चंस, तो उसमें मुझे एक थोड़ा सा OCD टाइप का था कि दीज डेली टेस्ट दैट दीज कोचिंग ऑर्गेनाइजेशंस गिव अस, तो उसमें एक तो दृष्टि IAS का और एक बायजूस का, तो वो डेली क्विजेस निकालते हैं एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दे डू. मतलब कूडोज टू देम, थैंक्स टू ऑल ऑफ देम. सर उसमें ये था कि अगर एक दिन का भी छूट गया मेरा तो मेरा होगा नहीं, ऐसा मैं सोच के रखती थी कि एक दिन का भी अगर छूट गया ना किसी भी तरीके से, रात के 1 बजे हो 2 बजे हो, अगर आज का आज नहीं किया मैंने तो मैं फेल हो जाऊंगी. वाह, ये था मेरा. ये वो बच्चों वाला रहता है ना ये भाई हाँ, ये नहीं किया तो मैं फेल हो जाऊंगी. तो वो था मेरा कि एक भी दिन का नहीं किया तो मैं फेल हो जाऊंगी. फर्क नहीं पड़ता उसमें मेरे 5 में से 1 क्वेश्चन ठीक हो रहा है, 5 में से 5 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं. फर्क सिर्फ इस चीज से पड़ता था कि वो 5 क्वेश्चन जब एक बारी मैंने सॉल्व कर लिए तो क्या मैं उनको रिटेन कर पा रही हूँ, और वो सर एकदम वो आपके दिमाग में रुक जाते हैं. इट काइंड्स ऑफ वाइडन्स योर नॉलेज जो आप ये क्वेश्चन सॉल्विंग, और उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अभी UPSC में है, द क्वेश्चन सॉल्विंग एप्टीट्यूड. द वे यू सॉल्व अ क्वेश्चन. अब वो एकदम मैजिक ट्रिक टाइप का लगता है लेकिन वो मैजिक ट्रिक नहीं होता है. उसमें ऑल ऑफ दो स्टेटमेंट्स यू हैव रेड हियर एंड देयर, आप नहीं पता कर सकते हो आपने कहाँ पढ़ा है, लेकिन वो आपके दिमाग में रहता है. एंड देन पोस्ट दैट, दिस इज वन थिंग दैट आई डिड. सेकेंड, इवन मोर इम्पोर्टेंट देन दिस, मॉक टेस्ट, as many as you can. उसमें सर व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, जैसे जो मॉक टेस्ट का पैटर्न होता है तो उसको मैं एग्जाम पैटर्न में ही सॉल्व करती थी. कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं. सर कभी कभी 40 क्वेश्चन ठीक होते थे, कभी कभी 65-70 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते थे, बट ना इसको दिल से लगाया ना इसको दिल से लगाया. उसमें जिस चीज को दिल से लगाया वो थी उसका सोल्यूशन, जो एंड दैट सोल्यूशन वो एकदम 40 पेज का सोल्यूशन आता है. तो उसको जैसे एक पेपर को अगर आप पूरा सॉल्व करो तो दैट क्वेश्चन सॉल्विंग वुड, मतलब इट वोंट हेल्प यू वेरी मच, दिस होल प्रोसेस वुड हेल्प यू वेरी मच, जिसमें आप पहले आपने पेपर किया उसके बाद आपने तुरंत सोल्यूशन उठाया उसका. फर्स्ट क्वेश्चन वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, बिकॉज देयर 5 स्टेटमेंट्स इन दैट क्वेश्चन. आपका राइट हो गया 3 स्टेटमेंट्स पे, 2 स्टेटमेंट्स तो बचे हैं अभी भी जो आपको नहीं पता थे. तो सर उसमें मैं ये करती थी कि जो 40 पेज का जो सोल्यूशन है उसमें आधे पेज का जो पैराग्राफ है उसको पढ़ा, उसमें से जो की पॉइंट्स थे वो निकाले और उसको वही यहीं पे छोटा छोटा लिख दिया, इसी पेपर में छोटा छोटा लिख दिया, बिकॉज देयर इज अ स्पेस देयर, मतलब आप स्पेस रहता है, और एकदम छोटा छोटा जो भी टॉपिक्स पॉइंट्स थे वो लिख दिए. 100 क्वेश्चंस में ऐसा ही किया. तो बहुत डिलिजेंटली अगर आप बैठो तो 5 घंटे लगते हैं. और फिर उसको आप रिवाइज कैसे करते थे? हाँ वही मैं बता रही हूँ. अगर आप ये 40 पन्ने का लेकर बैठोगे एग्जाम से पहले, इतना बड़ा हाँ. सर जो मैं पेपर्स करके डालती थी तो मेरी जो रैक थी, वुडन रैक, वो पूरी भर जाती थी. तो इतने पेपर्स सॉल्व कर लिए हैं, पेपर्स विद सॉल्यूशंस. तो सर उसमें ये होता था कि जो लास्ट में रिवाइज करने का होता था वो इतना सा होता था मेरे पास, और उसमें भी वो है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो. मैं सिर्फ वो रिवाइज करती थी 1 महीने पहले और 1 वीक पहले. जो पेपर्स मैंने अटेम्प्ट किए सब्जेक्ट वाइज, टोटल पेपर्स पूरे जो प्री के पेपर्स थे उनमें जो मेरे छोटे छोटे नोट्स वहीं बने हुए हैं, क्योंकि मोस्टली तो वो क्वेश्चन में ही कवर हो जाता है, और जो नहीं वो जो एक्स्ट्रा, जैसे फॉर एग्जांपल कल्याण मंडप की अगर बात कर रहे हैं हम, कल्याण मंडप इट्स अ फीचर ऑफ विजयनगर किंगडम. तो ये इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. अम्मान शाइन, कल्याण मंडप, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं विजयनगर को लेकर. विजयनगर मेंशन्ड है, मैंने वहां पे बस ये 2 चीजें लिख ली. सर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि सर व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग आई सेड, प्रोविदर स्टाइल किसकी है? तो सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट क्वेश्चन, प्रोविदर स्टाइल किस डायनेस्टी से रिलेटेड है? विजयनगर से रिलेटेड है. तो वो क्वेश्चन में वहां जब लिख दिए वो 3 पॉइंट्स, तो वो आपको याद आ जाएगा तुरंत जब आप एग्जाम में जाओगे. तो सर लास्ट में जो रिवीजन जो आप पूछ रहे हैं, तो मेरे पास सिर्फ ये पेपर्स होते थे. तो सिमिलरली आई यूज्ड टू डू दिस इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन. सर व्हाट अबाउट दोस
थिंग्स दैट यू हैड नोटेड? वो जो 40 पन्नों का उसको करते थे, उसको आप कंसाइज कैसे करते थे? सर वो 40 पन्नों का एक्चुअली मैं इसी में कर लेती थी, जो 5 पेज का जो पेपर होता है उसी में मैं लिख लेती थी। जैसे जो 40 पन्नों को मैं 5 पन्नों में कर लेती थी, जैसे जहाँ क्वेश्चन लिखा है वहीं पे मैं 3-4 पॉइंट्स डाल देती थी। आई कैन शेयर दोस पेपर्स आल्सो। वो जो पेपर्स जो मैंने किए हैं उसमें मैं खोल के उसको, जैसे ये पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है तो इसी के साइड में मैंने छोटा छोटा लिख दिया, अगले क्वेश्चन में छोटा छोटा लिख दिया जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, फिर बस उसी को रिवाइज करो, बिकॉज यू आर मेकिंग अप ऑन द इन्फॉर्मेशन दैट यू ऑलरेडी हैव इन योर हेड। आप एकदम नया चालू करोगे कुछ रिवाइज करने के लिए तो दैट वुड बी अ डिजास्टर, बिकॉज repetition is more important. Third thing is your current affairs. तो सर उसमें न्यूज़पेपर बहुत ज्यादा, तो सर न्यूज़पेपर भी किया मैंने, लेकिन सर एक पॉइंट था जिसने मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया, मतलब दिस इज अ वेरी पर्सनल चॉइस कि आप करना चाहिए करिए, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू से सीधे सीधे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर एक जो अनदर थिंग्स दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर द कोचिंग्स, ग्रेटफुल टू द कोचिंग्स फॉर, उसमें सर शायद बायजूस का एक हिंदू एनालिसिस आता है, वो 1 घंटे का होता है, 1 या आधे घंटे का, या कभी कभी 2 घंटे पहुंच जाता है, वीडियो होता है, वो यूट्यूब पे होता है फ्री। सर उसमें सर मैंने क्या किया था, मेरे नोट्स 2 तरीके के बनते थे, एक प्री के और एक मेंस के। तो सर उसमें जो जैसे मेरी 4 कॉपीज थी, GS 1, 2, 3, 4, ऐसे एंड ऑप्शनल। तो ऑप्शनल का तो अपना सिस्टम चलता है पूरा, ऑप्शनल की अपनी खुद की थियोरीज चलती हैं। तो उसमें what I used to do was करंट अफेयर्स को आपको कैसे ऐड करना है। तो सर कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा, एनजीओ के बारे में क्वेश्चन आएगा, तो अगर करंट अफेयर्स में प्रथम की बात हुई है और रिसेंटली प्रथम न्यूज में है, तो उसको मैं जाके उस करंट अफेयर के उस टॉपिक में नोट कर दूंगी कि ये एक बात हुई है, तो इसको मुझे करना है। और जो ऐसा लगता था कि ये बहुत रेलेवेंट है प्रीलिम्स से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल सर आज ही की न्यूज है, अभी आई डोंट रिमेम्बर द स्टेट, में अभी बस देख रही थी, तो उसमें नई मेगालिथिक साइट्स अभी डिस्कवर हुई हैं इंडिया में, एंड दे आर एक्सटेंसिव, फॉरेस्ट में एकदम फॉरेस्ट में मिली हैं वो। तो दिस वुड बी समथिंग दैट आई वुड रन एंड नोट इन दोज नोट्स। सिर्फ एक बुलेट पॉइंट बनेगा उसका, बहुत एलैबोरेट होने की जरूरत नहीं है। फिर आप एग्जाम से 1 महीने पहले और 1-2 वीक्स पहले आप इसको रीड करोगे, बहुत ज्यादा नहीं होगा। और फिर इसमें मतलब ये प्री के लिए बहुत कम, प्री के लिए तो आप बस उसको देख रहे हो और आप उसको पूरे होशो आवाज के साथ सुन रहे हो, नो डिस्ट्रैक्शन। सर आई यूज्ड टू वेक अप एट 5 एंड टेक दिस क्लास, एंड सर वन ऑफ माय सिस्टर्स वुड यूज टू सिट विद मी। अच्छा वो काफी एक्सक्रूशिएटिंग हो जाता है पूरा नोट करना, तो सर उसमें कॉपी तो एक ही रहती थी पर नोट हम 2 लोग करते थे। अच्छा। वैसे करते थे। और सर तो ये तो हुआ प्री का, तो इसमें करंट अफेयर्स आई डिड बाय दीज वीडियोस, तो दे हेल्प मी अ लॉट। उसमें नोट्स निकाले मैंने उन वीडियोस में और फिर उन नोट्स को रिवाइज किया मैंने। दिस इज मोर हेल्पफुल इन मेंस एक्चुअली। ये जो अपन छोटे छोटे नोट्स बनाते हैं हम, ये मेंस इज ऑल अबाउट फर्स्टली योर कंटेंट एंड हाउ डू यू एनरिच दैट कंटेंट बाय providing more examples to that content. We'll go on to mains, but first tell me वो moment कैसा था जो में रिजल्ट आया, क्योंकि आपने वो तो बताया कि आंखों से आंसू आ रहे थे, बट जब इस साल का रिजल्ट आया और जब सिलेक्शन हुआ, एंड व्हाट वाज दैट मोमेंट, व्हाट वर यू डूइंग एट दैट टाइम, एंड किसको कॉल किया, क्या इमोशंस चल रहे थे उस टाइम पे? सर आई विल टेल यू अबाउट इट। सो सर इसमें भी काफी फनी सिचुएशन थी कि my father is always looking up to the next step. My father was pestering me, time waste मत कर, प्री आ रही है। अरे वाह। time waste मत कर, प्री आ रही है, प्री की तैयारी करनी है। तो सर somehow I started preparing for pre, लेकिन सर वो एग्जाम जो रिजल्ट से जो 1 वीक पहले होता है तो उसमें आपका नहीं दिमाग लग पाता है। तो उसमें फिर एग्जाम का डेट भी पोस्टपोन हो गया था, अभी 16 जून को है। तो मैंने पापा को बोला, पापा अभी मेरा बेस तो क्लियर है, मुझे 60 दिन लगेंगे प्री की तैयारी करने में, तो अभी लेट मी ब्रीथ फॉर अ वीक, जस्ट डोंट पेस्टर मी। तो उसमें फिर अब जब एक था कि 50, कुछ लोग बोले थे 12th को रिजल्ट आ जाएगा, कुछ लोग बोले थे 15th को आ जाएगा, कुछ लोग बोले 16th को आ जाएगा। सर मेरा तो यही था कि आई यूज्ड टू लुक अप, प्लीज गॉड। और जब भी आए मेरा हो जाए। एक ये था, एक उसमें ये रहता है कि मैंने कहीं ये सुना था, आई थिंक इट इज अ कोट बाय वन ऑफ द एक्टर्स, जितना मांगना है मांगो,
द ऑलमाइटी हैज अ लॉट टू गिव। लेकिन सिर्फ मांगना ही नहीं है, आपको पूरी मेहनत करनी है। एंड सर इन दिस जर्नी आई गॉट स्पिरिचुअल, दैट इज वन ऑफ द प्रोज ऑफ दिस जर्नी। सर उससे पहले नहीं समझ में आती थी ये सारी चीजें, बट इसमें मुझे समझ में आया कि यू नो देयर इज अ पावर बियॉन्ड एवरीथिंग। luck, some people call it luck, some people call it God. Yesterday only I got a Instagram post, उसमें कहा कि एक पॉइंट ऐसा आ जाता है ना जहाँ पर सारी स्ट्रैटेजी सब कुछ फेल हो जाती है, सब कुछ सिर्फ भाग्य पे एग्जैक्टली भाग्य पे डिपेंड करता है। और सर उसमें मतलब जो स्पिरिचुअलिटी वो यहाँ आती है, उसमें आप बदले में कुछ नहीं मांगते हो, उसमें बस ये है कि सर दिस बिग अ ब्रेन वी हैव, दिस स्मॉल अ हार्ट वी हैव। उसमें कितना प्रेशर लेगा एक छोटा बच्चा, कितना प्रेशर लेगा एक बेचारा आदमी। तो सर उसमें जब आपने अपनी पूरी मेहनत करके लिख दिया, तो सर मैं तो ये करती थी कि मैं मेंस का पेपर लिख के आती थी, मैं उस पेपर को थोड़ा एनालाइज करती थी कि यार ठीक हो गया, उसको फिर हम भगवान के ड्रॉअर में डाल देती थी। मैंने अपनी पूरी मेहनत कर दी, मैंने अपनी जान निकाल दी, पूरा पसीना पूरे हाथ की फिगर चेंज हो गई है। अब आप देख लो इसके आगे, क्योंकि इसके आगे आई कांट डू एनीथिंग, आई हैव डन माय वर्क। उससे पहले मैं सिर्फ एक चीज मांगती थी कि मुझे मेहनत करने की शक्ति दी। रोज मैं ये मांगती थी कि प्लीज गिव मी मोर मोटिवेशन दैट आई कैन वर्क हार्ड। सिर्फ ये मांगा मैंने उससे पहले। लेकिन जब एक बार पेपर लिख दिया, पेपर सरेंडर कर दिया, फिर उसके बाद सरेंडर कि अब मेरा काम हो गया, तो अब आप देखो, क्योंकि उसके आगे अब आप ओवर थिंक करोगे तो यू आर किलिंग योरसेल्फ। उसके बाद यू जस्ट लीव इट टू चेंज एनीथिंग ना, यू चेंज एनीथिंग आफ्टर दैट। उसके बाद यू लुक अप टू द नेक्स्ट थिंग, उस चीज को छोड़ दो। तो यू नो दिस जर्नी मेड मी वेरी स्पिरिचुअल, सो इट मेड मी वेरी रिलैक्स्ड एट अ पॉइंट। सर तो सर उस दिन किसी ने बोला 12 को रिजल्ट आ रहा है, तो मैं तो ये मांगने वाली बात जो हम कर रहे थे कि उसके पास बहुत सारा है देने को, आप मांगो, जितना मांगना है मांगो, आपको ये चाहिए आप मांगो, आपको वो चाहिए आप मांगो। रैंक 1 भगवान जी, रैंक 1 आई यूज्ड वो अंदर से पता था कि व्हाटएवर इट इज आई विल बी हैप्पी, यू नो। अगर नहीं होता है तो अगले दिन से आई स्ट्रेटेजाइज। सर सपने आ रहे थे मुझे, ये आई वाज गेटिंग नाइटमेयर्स कि ये होता था कि पापा आके मुझे बताते थे कि नहीं हुआ है, लिस्ट में नाम नहीं है। तो सपने में मैं थोड़ा सा परेशान होती थी, लेकिन सर सपने में भी आई टेल यू, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, 10 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा परेशान होती थी, यार ये क्या हो गया, समझ नहीं आ रहा है, अब आगे क्या करें। लेकिन 10 मिनट के बाद द फर्स्ट थॉट दैट यूज्ड टू कम टू माय माइंड इवन इन माय ड्रीम वाज कि अब नेक्स्ट क्या करना है, क्या कमी छूट गई होगी हमारे इसमें। तो सर जब रिजल्ट आया तो उसमें तो एक्चुअली मैं अपने ऑफिस गई थी, ऑडिट एंड अकाउंट्स। तो जैसे ही मैं घर पहुंची तो आई वाज इन माय रूम and Chacha came shouting, he was shouting at the top of his lungs, and then he hugged me and then he told me ki okay, we got it. Sir, it was अभी तक तो सर अभी तक भी I don't think it has sunk in, मतलब I'm really happy for my parents, they're really happy, लेकिन मुझे अभी तक उसकी जो ग्रेविटी होती है वो शायद अभी तक पूरी स्ट्राइक नहीं करी है कि you know one part of your journey is over. That was a very big part and it's over. Now we are looking forward to something else. Sir, अब धीरे धीरे लगने लगा है कि okay fine, nice, fine. मतलब it really felt good. I felt really grateful. And what was your father's reaction of it? My father's reaction was, sir, he has been waiting for this for 10 years. So he just sat still, then danced. Then sat still, then danced. So sir, it was that these people were more happy than, I mean happier than I was for myself. They were happier for me because उनको जैसे सर actually I didn't cry this time. When I got the result, I didn't cry. I cried when I got selected for interview. तब sir I cried really hard because interview was something that I wanted to appear. तो उसमें I really cried कि that was surreal. This one फिर सर उसमें पिछले बार जब मेंस नहीं हुआ था तब also I cried. इस बार तो फिर वो इतना हंगामा हो गया कि वो रोने का मौका ही नहीं मिला. So the family is really happy. I'm grateful to God and I'm grateful to all the people that supported me in this journey. You know, who
somehow in even the slightest smallest manner they help me. And sir, apart from the family, there were some people who kept my calm. कि आप सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा हो जाता है कि कैसे करेंगे, नहीं होगा तो there were some people who were there despite the failure, despite the success. They were the rocks. कुछ भी करो तुम जिंदगी में, हम साथ खड़े. The family is also, और सर पेरेंट्स कभी कभी क्रिटिकल हो जाते हैं जब फेलियर्स मिलते हैं. माई फादर, माई पेरेंट्स, सर जब भी कोई आया है उनसे मिलने के लिए, उन्होंने यही बोला है कि बहुत मेहनत की है इसने, बहुत पोटेंशियल है इसमें, करेगी, ये नहीं करेगी तो कुछ और अच्छा करेगी. उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि कर नहीं पाई है. कभी कभी बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं पेरेंट्स. सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है ना, उसी चीज को बताने के आपके पास वर्ड्स होते हैं. ऑफ कोर्स, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट. तो सेकंड में भी उन्होंने कभी दे वो अशेम्ड वाली फीलिंग तो सर कभी आई ही नहीं. उसमें सर मेरा फिर एक मोटो है मेरी लाइफ का, एक तो नन्ही चीटी दैट आई टोल्ड यू अबाउट. उसके अलावा सर बोलते हैं कि बहुत सेल्फ क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, हम खुद में कमियां बहुत सारी नहीं निकालनी चाहिए. कमियां निकालने से ही हो, बिकॉज द मोर फॉल्ट्स यू फाइंड विद योरसेल्फ, फॉल्ट्स तभी निकलेंगे जब आपको ये लगता है कि यू मेड फॉर समथिंग बिगर. It's important, like निकालना is different and accepting that is different. You have done your mistake, but you will improve. Of course. And this is the first step of improvement. That is the first. Until and That's unless what I'm talking about. आप कमी नहीं अगर accept नहीं करेंगे तो आप improve कैसे करेंगे? नहीं, मेरी गलती नहीं है, मैं तो सब लिख के आई थी. मैंने पूरी मेहनत कैसे हो सकता है? मैंने पूरी मेहनत नहीं, कोई कसर छूटी थी. तभी तो नहीं हुआ ना. Of course. और सर उसमें फिर आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन कि सर ये सपोर्ट सबके पास नहीं होता है. सर बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव 3 younger brothers. सो मैं तो, एंड सर द काइंड ऑफ कोर्स ये फैमिली में चलता है. सो द काइंड ऑफ रिलेशन आई हैव विद देम सर, इट्स नॉट एनी ऑर्डिनरी सिबलिंग रिलेशनशिप. सर वो दे लुक अप टू मी सिंस द बिगिनिंग. दीदी ने जो कहा वो पत्थर की लकीर है. But if anybody is there in the world who can change their mind, it's me. Not even the parents, it's me. So sir उसमें मैं मजाक में कहती हूँ 3 पियून्स भगवान ने दिए हैं मुझे. So फोटो कॉपी करनी हो, कुछ भी करना हो. सर सेकंड मेरा जो फर्स्ट मेंस था वो इसीलिए छूटा था क्योंकि क्वेश्चंस छूट गए थे. तो उसमें मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यार कंटेंट भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जब मार्क्स आए तो मार्क्स के साथ ऑफ कोर्स आई फेल्ड, लेकिन जब मार्कशीट आई तो पापा ने मार्कशीट के साथ नीचे लिखा था प्राउड ऑफ, दिस इज द नैरेटिव सर. तो उसमें सिर्फ 8 या 10 मार्क्स से मेरा मेंस छूटा था. बहुत ज्यादा होते हैं 8 या 10 मार्क्स. अभी तो 8 या 10 मार्क्स से आपकी 100 में रैंक चेंज हो जाती है. लेकिन फिर भी मतलब व्हेन यू आर आउट ऑफ द जोन, व्हेन यू आर आउट ऑफ द गेम, इवन 8 और 10 मार्क्स की हम यार एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा लिख देते तो हम अंदर होते. तो उसमें सर फिर उसमें ये किया कि पेपर तो कंप्लीट करना पड़ेगा. पहली बार में मैंने सिर्फ कंटेंट एनरिचिंग के लिए काम किया. पढ़ती गई, लिखने में उतना टाइम नहीं दिया. इस बार माय यंगर ब्रदर, ही इज 19 राइट नाउ एंड ही इज प्लेइंग क्रिकेट और अभी अपने सेकंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है वो. उसको मैंने बोला कि तू 3 महीने के लिए, बोला भी नहीं सर, ही सैक्रिफाइस इट हिमसेल्फ कि आई नीड योर हेल्प फॉर 3 months. सर वो क्योंकि मेंस के तुरंत 3-4 महीने पहले तो आपकी 15-15, 16-16 घंटे की पढ़ाई चलती है. उसमें तो यू जस्ट यू नो स्टैंड फॉर, यू जस्ट टेक अ ब्रेक फॉर ईटिंग और यू नो द अदर थिंग्स, इम्पोर्टेंट थिंग्स. वो सर पूरे 10-10 घंटे बैठा मेरे साथ एंड ही वाज द, क्या बोलोगे, वार्डन. कि आई समटाइम्स, वो सबके साथ होता है कि यू नो you are reading something and you start thinking of something. You know that one person, do it. Daydreaming, वो daydreaming. So he always snapped me out of it. उसके बाद हर प्रोसेस में इन्वॉल्व होना कि एनजीओ कर रहे हैं तो वो 4 NGOs के नाम बताएगा मुझे. अगर हम किसी नई चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी नए नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, तो he'll give me this information and I'll jot it down. तो सर ही वॉज इन द प्रोसेस. और सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है सर, बच्चों को वर्कबुक नहीं देते हम, एक क्वेश्चन लिख के दे दिया और फिर उसके बाद तो उसमें हम जब पूरा पेपर किया तो समझ में आया कि स्पीड कम है. उसमें देयर इज अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर, तो वो तो मैं बाद में बताऊंगी. अभी कि स्पीड ही उतनी नहीं आ रही है. तो उसमें उसने स्टॉप वॉच ली
एक एक क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया। उसने वो क्वेश्चन लिख के देता था मुझे, मेरे खड़ा रहता था यहाँ पे, आई यूज्ड टू राइट द आंसर, एंड जितना भी हो जाए, मतलब आप जितना कैलकुलेट करके कि 5 से 7 मिनट में आपको जो आंसर लिखना है, छोटा वाला 5 मिनट में, 5 मिनट में बंद, छीन ले, जितना हुआ उसी में वो अपने आप से मार्क्स दे देगा। इसमें यू विल गेट 2, इसमें यू विल गेट 3, इसमें यू विल गेट 4। तो सर ये प्रोसेस करते करते आई थिंक इट टुक मी ओनली 10 to 15 days टू कंप्लीट माई पेपर्स। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चंस में गए, 3 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चंस में गए, वो स्टॉप वॉच लेके खड़ा रहता था, वो क्वेश्चन खुद अपने हाथ से लिख के देता था, और उसमें जैसे ही टाइम खत्म हुआ पेपर छीन लिया गया। तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम क्वेश्चंस खत्म होने लगे, एंड देन विद दैट वी आल्सो एनरिच्ड आवर कंटेंट आल्सो। तो सर उसमें दिन को हिस्से में बांट रखा था कि जो पूरे दिन का हिस्सा रहेगा उसमें रीडिंग होगी, जितना कंटेंट आपको लिखना है, बढ़ाना है, एग्जाम्पल जितने ऐड करने हैं वो हम करेंगे। बाय द एंड ऑफ द डे 2 to 3 hours आंसर राइटिंग करें, क्योंकि सर आंसर राइटिंग करने से जो चीजें याद भी बहुत ज्यादा हो जाती है। वंस यू राइट दैट आंसर यू विल रिमेंबर दैट आंसर, एंड उससे स्पीड बढ़ जाएगी। एंड देन देयर इज वन थिंग दैट आई डिड इन माय सेकंड अटेम्प्ट। पेन का बहुत बोलते हैं कि व्हेन एवरीबडी इज राइटिंग फ्रॉम दैट वन जेल पेन, ट्राइमैक्स से लिख रहे हैं, पायलट से लिख रहे हैं, तो नो नीड टू अबाइड बाय दोज। सर मैंने जेल पेन से लिखा, तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से भी आपकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, इफ यू आर नॉट acclimatized to using those pens. This year I used the pen which I have been using since my graduation. It was a ball pen, a ball जो अच्छा दिखता है सर। उसमें मुझे नहीं लगता पेन से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, उसमें आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए, एंड देन योर प्रेजेंटेशन शुड बी ब्यूटीफुल, मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस, द मैप दैट यू आर मेकिंग, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप जो आप बना रहे हो, कितना साफ सुथरा है। एंड राइटिंग ऑल्सो फेचेज यू मार्क्स, बिकॉज आपकी कॉपी जितनी अच्छी लगेगी देखने में, कंटेंट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन उस चीज से भी फर्क पड़ता है। इफ यू आर गेटिंग सम मार्क्स, 5 to 6 to 10 मार्क्स इन चीजों की वजह से एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, लेकिन अगर बहुत अच्छा पेन यूज करके आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नेवर वर्थ इट। वो 80-20 रूल जो रहता है यूजुअली, कि आप कितना एफर्ट उस छोटी सी चीज को कितना ही दे पाएंगे। एब्सोल्युटली। तो अगर ऐसी कोई चीज जो दुनिया कर रही है और आप उसको कर रहे हो और आपको उससे नुकसान हो रहा है, तो डू नॉट डू इट एट ऑल। मतलब यू मेक योर ओन वे, यू मेक योर ओन पाथ। तो सेकंड अटेम्प्ट में तो मैंने सबको बोल दिया था कि मैं और मेरा भाई हम दोनों ही मिलके कर लेंगे, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। Ankita Di was in the process. She used to check my papers. She is a perfectionist. You know, she wants everything perfect. नेहा इसको कंप्लीट करना है, नेहा ये आंसर अच्छा नहीं आ रहा। कैसे करना चाहिए सर उसमें फर्स्ट वुड बी सर इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स सर रिसेंटली आई एम गेटिंग these questions कि हम we come from the background of electrical engineering, mathematics and all of that, कि हम तो सर इस बैकग्राउंड से आके इधर फिगर आउट करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। तो सर लेकिन देयर आर सम टॉपर्स जो मैथमेटिक्स से दे हैव स्कोर्ड फैंटास्टिक मार्क्स, they have scored 180, 170 marks, 190 marks from I have interviewed an IAS officer. He did it from electrical engineering itself. उनका गेट में रैंक आया था, इंजीनियरिंग सर्विसेज में 3rd रैंक थे, तो he knew कि it's his genre and he can do it. So if you're confident in your subject, जैसे जो भी हम ग्रेजुएशन से करके आते हैं, तो अगर आपका जो बैकग्राउंड है, if maths is your love, if you're very confident in it, then there's no need to change. But sometimes sir when we graduate from a certain subject, जरूरी नहीं होता है कि हमारा उस पे उतना कमांड हो गया है, तो सर उसमें फिर it's safer to choose a safe subject. सर जैसे अभी छोटे सब्जेक्ट जो होते हैं, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, तो उन लोग जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो इनको लोग प्रेफर करते हैं ताकि प्रिपेयर जल्दी से हो जाए और उसमें आपको इम्प्रूवमेंट करने की बहुत गुंजाइश मिले। दिस इज ऑल्सो वन नैरेटिव। सो दीज आर द 2 things दैट पीपल कैन गो फॉर इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इन योर सब्जेक्ट। अगर बहुत ही केमिस्ट्री, मैथ्स में अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो तो स्टिक बाय दोज सब्जेक्ट्स। लेकिन अगर आपने एकदम मीडियोकर तरीके से आपका ग्रेजुएशन जो भी आपका जो किया है, आपकी डिग्री ली है, तो यू शुड चूज द सेफर सब्जेक्ट्स। थर्ड ऑप्शन विच आई वेंट फॉर, सर द ऑप्शन विच आई वेंट फॉर इज विच विल हेल्प यू द मोस्ट इन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल।
तो जैसे हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल था, तो पेपर 1 में हिस्ट्री है, पेपर 1 में 60 to 70 मार्क्स हिस्ट्री है। देन अपार्ट फ्रॉम ऑप्शनल इंटरव्यू में हिस्ट्री है, और बाकी एवरीथिंग इज हिस्ट्री, यू रीड एवरीथिंग इन हिस्ट्री। ऐसे में हिस्ट्री है, व्हाट डू यू मेक एन ऐसे आउट ऑफ? हम इवेंट्स जो हुए हैं अभी तक, एग्जैक्टली, इट्स बीन इन द पास्ट, तो जो भी अभी तक हुआ है आप एग्जांपल्स डिराइव करोगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स डिराइव करोगे। आप अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी थी जो बिल्कुल हटके थी, अब उसके बारे में जब आप आपके ऐसे में बात करोगे, या फिर एनी एनेक्डोट, आप ये जो गार्गी याज्ञवल्क्य स्मृति से, तो श्रुति शर्मा मैम had also this history option only. So know that in our essay it shows that you are from history and you have all that content. Then jump to ethics. Of course, and it's my subject. I will say all the positive points about it. But how did you figure out that ये करना है? I know you have got a logic with it, but किसने help किया आपको? So my father. So my papa and chacha both had history as their options, and so they in their head they had it all figured out कि history ही, and sir history के बारे में एक narrative चलता है कि बहुत ही vast है, बहुत ज़्यादा vast है, लेकिन सर ancient है, medieval है, modern है और world है। तो जो vast उसको बोल रहे हैं उनको वैसे भी वो पढ़ना पड़ रहा है पेपर 1 के लिए। Everybody is reading Vijayanagar, everybody is reading Cholas. Yesterday only we had an interview with a topper. He's from CGPC and he told that कि हिस्ट्री एक्चुअल में नहीं आता है कि इतना बड़ा है कि कहाँ से स्टार्ट करें। एग्जैक्टली। लेकिन सर उसमें ये था कि ऑफ कोर्स आई हैड हेल्प फ्रॉम द बिगिनिंग, लेकिन उसको हिस्ट्री समेटना बहुत आसान है क्योंकि वो हो चुका है, इट विल नॉट चेंज। ऑफ कोर्स देयर विल बी न्यू नैरेटिव्स, जैसे नई नई नैरेटिव्स आते हैं कि नई नई थियोरीज आती हैं जिसमें सबऑल्टर्न अप्रोच आ जाती है, जिसमें नेशनलिस्ट अप्रोच आ जाती है, कॉलोनियलिस्ट अप्रोच आ जाती है, डीकॉलोनियलिस्ट अप्रोच आ जाती है, बट इट्स ऑल फन, यू नो। देयर आर हिस्टोरियोग्राफी इज एन एडिशन कि अभी जो कैंडिडेट्स हैं वो उसको थोड़ा सा और ध्यान देना स्टार्ट किए हैं, क्योंकि ना एक बेस तो बन गया, अब उसको और इम्प्रूव और टेक्निकल कैसे बनाया जाए सब्जेक्ट को। बट सर वो वैसे भी आपको यूपीएससी की तैयारी करते करते आपको करना ही पड़ेगा। हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ के पूरा हिस्ट्री जो एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न है वो सब करते हैं। तो उसमें जब आप ऑप्शनल ले लेते हो उसको, तो पेपर 1 में आपको करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है उसको, बिकॉज इट्स ऑलरेडी डन इन योर ऑप्शनल। सो पॉलिटी इज अ सिमिलर काइंड ऑफ सब्जेक्ट। पॉलिटी ऑल्सो फेचेस यू अ लॉट ऑफ मार्क्स इन जीएस, क्योंकि सेकंड पेपर इज ऑल पॉलिटी। So if you meet a person who has his or her optional as polity, he or she will say the same thing. But sir history मुझे लगता है जैसे polity आपको आपके ऐसे और ethics में कहाँ help करेगी, मतलब करेगी obviously, but it would get very technical. But history से आपको stories मिलते हैं, history से आपको anecdotes मिलते हैं, बहुत interesting चीजें होती हैं history में, और वो आपको पता होता है। अब जैसे 5000 years ago we had a civilization which was the oldest. हम हमारे देश की प्राइड एक्सट्रैक्ट करते हैं हमारी हिस्ट्री से, कि जब ये जो बाकी इजिप्शियन सिविलाइजेशंस एंड ऑल ऑफ दोस सिविलाइजेशंस वर गोइंग ऑन, वी वर आल्सो देयर, एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम देयर वर ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशंस, ग्रेट अदर डायनेस्टीज व्हिच वर देयर, यू नो, व्हिच कल्चरली, इकोनॉमिकली, अब जैसे देयर इज दिस रीसेंट थ्योरी बाय उत्सा पटनायक, 53 उसमें बिलियन डॉलर्स एक्सट्रैक्ट किया गया है इंडिया से। क्योंकि अब जब ड्रेन ऑफ वेल्थ की हम बात करेंगे तो ये तो स्टार्टिंग से चल रहा है। इंडिया वाज द किंग पिन ऑफ कॉमर्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। व्हाई वाज इट द किंग पिन ऑफ कॉमर्स एट दैट वन पॉइंट ऑफ टाइम? व्हाई इज इट नॉट नाउ, एंड व्हाई इज इट बिकमिंग? व्हाई, हाउ आर वी पेविंग टुवर्ड्स दैट? सो इन अंडरस्टैंडिंग you today, the understanding of the past is very necessary, and history gives you an opportunity to do that, you know, to take that part. And what about selecting very what about like very different, अगर कोई optional रहता है, जैसे geology वगैरह हो गया या कुछ, तो क्या करना चाहिए? So then the first option that I talked about, interest. If you're interested in geology, there is no question taking something else. If you're interested in public administration, and if you're interested in fetching marks and you don't want to go for a bigger subject, if you don't want to go for a vast subject,
then we have safe options for, you know, those people who want to play it safe. But either ways, interest is above everything. अगर आप जियोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, so then there's no question asking that question. Because the people who are interested in geology, they have cracked the exams with geology, exam with geology. The people who are interested in chemistry, they have cracked the exam with chemistry. The people who were interested in mathematics, who were confident in their mathematics, have been the toppers of the examination. And language subjects also. Language subjects, obviously, sir. तो इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट इन. अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि अगर आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जो ऑप्शंस हैं आपके पास, अगर 2-3 ऑप्शंस हैं, तो आप यू गो थ्रू द सिलेबस वंस. जिसका सिलेबस आपको डूएबल लगता है, यू कैन चूज दैट ऑप्शन एज वेल, बिकॉज चूजिंग एन ऑप्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज half of your marks in mains come from your option. So sir, it is very, very important. So a proper thought behind it, and that thought should be of self. You can be assisted, yes, but you can only be assisted, you can only be guided, you can only be influenced, but to a certain level. It should be your decision. My father convinced me to take history. So it was my decision to take history, and sir, I had history in my graduation as well. तो सर उसमें मतलब बेसिक से कि कौन कब आया तो वो तो पता ही था. तो उसमें खांचे भरने थे कि दिस हैपेंड, अब इसमें 4 राजाओं के नाम और याद करने हैं, दिस हैपेंड, इसमें 4 हैपनिंग्स और याद करनी है, दिस हैपेंड, इसमें 4 कॉजेज एंड इफेक्ट्स और याद करने हैं. बट मोटा तो पहले भी बेसिक तो I knew it. मतलब इतना ग्रेजुएशन में जो करते हैं वो भूल जाते हैं वैसे तो. And how was your timetable like? How did you distribute your time? कैसा रहता था? कि students like to copy that. Yes sir. So my that thing that OCD thing I told you about, sir, वो मेरा टाइम टेबल बहुत ही जैसे नॉर्मली अगर आप पूरे साल भर की बात करो तो उसमें 7 घंटे, मतलब I didn't delve into it completely for the whole year. ऐसा नहीं था कि दुनिया खत्म हो गई है, जिंदगी खत्म हो गई है. सर, आई यूज्ड टू रन एवरी डे. आई यूज्ड टू रन एवरी डे अराउंड, सर कभी तो 3 से 5 किलोमीटर. एंड सर, एवरीबडी इज अ फिटनेस फ्रीक इन माय हाउस. तो छोड़ने नहीं दे सकते कि आपको फिजिकल फिटनेस तो रखना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है. तुम बन जाओगे कुछ भी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा कि तुम फिट, अगर तुम फिट नहीं रहोगी तो. सर, आई हैड मीडियम्स एंड देन माय इंटरेस्ट भी, जैसे मुझे म्यूजिक, आई रियली लव म्यूजिक एंड देन आई लव रनिंग. उसमें फिर लैंग्वेजेस से आई फाइंड लैंग्वेजेस वेरी इंट्रीगिंग. तो सर, जैसे संस्कृत का कोई एक गाना है तो वो कोई एक प्रार्थना है, तो वो अभी आई थिंक लास्ट मंथ आई जस्ट फॉर नो पर्टिकुलर रीजन आई जस्ट रिमेम्बर्ड इट एंड आई जस्ट मतलब उसको रट लिया मैंने और उसको मैं गाती रहती. सिंपल. सो दैट इज वन ऑफ माई इंटरेस्ट, लर्निंग दोज कोड्स, poems to, you know. So you are an early person or late night person? कब आप उठते थे और फिर कब से पढ़ना वगैरह? उसमें ये होता था कि साल भर तो I used to wake up really early. तो साल भर वो 5 बजे उठ के जो 5 बजे वाली क्लास होती है, जो वो मैं 5 बजे लेती थी, दैट करंट अफेयर्स क्लास, वो साल भर चलता था. लेकिन ये चीज किसी भी एग्जाम के 3 महीने पहले, जैसे प्री के 3 महीने पहले, मेंस के 3 महीने पहले, ये चेंज हो जाता था. उसमें मैं कितनी भी कोशिश कितनी भी कर लूँ, वो रात के 1-2 बज ही जाते थे सर उसमें. तो उसमें बेसिकली टाइम टेबल में मैं ये जो लास्ट के जो 3 महीने रहते थे उनमें तो स्लॉट्स बने हुए रहते थे, हर सब्जेक्ट के स्लॉट्स बने हुए रहते थे. कि जैसे प्री का अगर टाइम हुआ तो उसमें कि मुझे एक दिन में 3 पेपर्स खत्म करने हैं विथ द सॉल्यूशन, द प्रोसेस आई टोल्ड यू अबाउट. 3 पेपर्स खत्म करने हैं और आज ये 3 पेपर खत्म नहीं हो तो मैं फेल हो जाऊंगी. आई यूज्ड टू डू दैट कि ये तो करना ही है. तो दैट वाज समथिंग इन माय हेड. कभी 2 होते थे, कभी 3 नहीं हो पाते थे, लेकिन वो फिर आप जब रात को सो तो यू शुड बी हैप्पी विद योरसेल्फ, यू नो, यू शुड बी हैप्पी विद व्हाट यू डिड योर एंटायर डे. और फिर मेंस में आई यूज्ड टू मेक स्लॉट्स फॉर GS 1, 2, 3 वैसे करके पूरा स्लॉट होता था 4-4, 5-5 घंटे का. उसमें ये पढ़ने का स्लॉट होता था और फिर बाय द एंड ऑफ द डे आंसर राइटिंग का स्लॉट होता था. ये मेरा 10 बजे तक खत्म होता था. आंसर राइटिंग के 2 घंटे चलते थे, वो 10 बजे खत्म हो गया. 10 बजे आई यूज्ड टू गो टू माय रूम,
उसमें उसमें माय ब्रदर, वो मतलब वो ब्रदर 10 तक ही होते थे मेरे साथ, क्योंकि वो आंसर राइटिंग कराते थे। उसके बाद फिर मेरा रिलैक्स टाइम होता था, एंड दैट रिलैक्स टाइम वाज एथिक्स टाइम। उसमें सर आई यूज्ड टू प्ले दैट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, दैट कामिंग म्यूजिक, वो जो इंस्ट्रूमेंटल्स चलते हैं, दैट कामिंग म्यूजिक, वो मैं प्ले करती थी, रूम में चलता था। और उसमें देन आई यूज्ड टू रीड एथिक्स। सर वो एथिक्स पढ़ना ऐसे होता था कि पूरे दिन में जो आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है वो रिलैक्सेशन होता था एक्चुअली। टॉपर्स के ऐसे रिलैक्सेशंस होते हैं कि नहीं आप नहीं पढ़ सर, रहे हैं। वो एक्चुअली बहुत रिलैक्सिंग होता है, क्योंकि उसमें वो रटने का नहीं है, वो नई चीज को सीखने का है। एंड आई एम वेरी fascinated by what people said, quotes and everything. So Martin Luther King Jr. की जो स्पीच थी, I have a dream, I can speak it right now. So वो स्टार्टिंग से था मेरा, so it has been one of my interests, learning all of those things. तो ये आपको मौका देता है वो सब करने का, कि आप इधर उधर से लोगों की स्पीचेस देखो, इधर उधर से नई नई पोएम्स देखो, आप अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देखो ऑफ सिविल सर्वेंट्स हु हैव डन नाइस जॉब्स, तो आप अपने एग्जाम्पल्स में डाल पाओ। जो ग्रेट पर्सनालिटीज है हमारे इंडिया की, वर्ल्ड की, उनके बारे में आप पढ़ो। जो बहुत ही मोटिवेटिंग पर्सनालिटीज है उनके बारे में छोटा छोटा पढ़ो, उन्होंने क्या कहा है उसको आप पढ़ो। एंड देन एथिक्स इज अ वेरी लेड बैक सब्जेक्ट, आई रियली लव एथिक्स उसमें। और उसमें इट गिव्स यू, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम, because it fetches you the exact same marks as GS 1 2 3 is fetching you. तो सर उसमें स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप अच्छा लिखने के साथ आपको स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट रखनी पड़ेगी। तो सर इसमें ये मेरा खुद का तरीका था। आई यूज्ड टू राइट संस्कृत श्लोक्स एज वेल इन माय एथिक्स पेपर। तो उसमें जैसे अभी वासुदेव कुटुंबकम, अब एवरीबडी वुड राइट वासुदेव कुटुंबकम, बट द पीपल who were writing Sanskrit shloks from the beginning, they used that even before it came into the regular vocabulary of people. Now it was the G20 summits motto, तो वो तो अब सबको वासुदेव कुटुंबकम है, लेकिन पहले से भी वो था कि अगर आप एक सिविल सर्वेंट की वैल्यूज के बारे में उसमें एक क्वेश्चन है तो आप कर्मसु कौशलम लिखोगे। अगर इनकम टैक्स या फिर टैक्सेशन के बारे में है तो आप कोश मूल्यो दंड लिखोगे। फॉरेस्ट सर्विस के बारे में है तो आप फॉरेस्ट सर्विस का वो लिखोगे। तो it has been, वो तो it used to be a relaxing time for me and I used to enjoy it very much, ethics. And सोने का टाइम? तो सोने का टाइम वो एथिक्स वो 10 बजे स्टार्ट होता था और वो मुझे लगता है कभी कभी तो 2 बजे तक चला जाता था। तो 2 बजे से 5 बजे तक बस सोना आपका? नहीं सर, मैंने बताया कि साल भर हाँ। में 5 बजे उठती थी, लेकिन एग्जाम के जो बहुत ही क्रूशियल मंथ्स हो जाते थे 1-2 महीने पहले, तब आई कुडंट वेक अप अर्ली। तब तो फिर आई यूज्ड टू वेक अप लेट ओनली। मतलब जब रात को 2 बजे सो रहे हैं तो सुबह वो 8 बजे टेबल पे होना, इस टाइप का होता है। कभी ऐसा नॉर्मल लोगों टाइप का आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ, डिस्ट्रैक्शन वगैरह किसी टाइप का आया हो? या सर मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकती है। I'm the person you can distract like that. तो उसमें please justify this first. अच्छा, all right, justify like that because sir I'm interested in a lot of things. I love painting as well. I love singing as well. मैं गाना गाते गाते भी 2 घंटे निकाल सकती हूँ। तो सर उसमें मेरे लिए अब जैसे the inherent toppers, the people who वो 10th में भी 12-12 घंटे पढ़ते थे, तो I think it comes easier to them. But to me it was a struggle. It was an everyday struggle, every day you have to look into the mirror and you have to fight yourself कि अगर आपको कुछ और करने का मन है तो no, you won't do it. If there's this movie out there where who has your favorite protagonist, or who a movie in which you're very interested in, so of course you will be inclined towards watching it, but sir you have to fight yourself on a daily basis. कभी-कभी तो जब आप बहुत मेहनत कर रहे होते हो, कभी-कभी एक बार आपने YouTube का कुछ खोल लिया तो उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो constantly at every moment I used to stop myself. I used to, मतलब एक बार फ्लो में आने के बाद तो the studies also became fun, लेकिन फिर भी वो इधर जाना तुरंत होता है because आप एथिक्स के लिए you have to go to internet, you have to go to YouTube. आप स्वामी विवेकानंद के कोट्स देख रहे हो, आप महात्मा गांधी के कोट्स देख रहे हो, तो उसमें देखते देखते
एक कोई नई पोएम आ जाएगी, फिर एक कोई मूवी का सीन आ जाएगा विच वुड बी वेरी तो सर उसमें भी सर आई ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ अ लॉट। लेकिन जैसे ये एथिक्स में मैं बताना भूल गई, मैंने मूवीज के जो एनिमेटेड मूवीज जो होती हैं और जो बहुत ही अच्छी मूवीज होती हैं उनके भी कोट्स डाले हैं मैंने। बिकॉज फिर वन एग्जांपल दैट आई विल प्रेजेंट यू विद इज कung fu panda was a movie. सर उसमें there's this dialogue that the master turtle speaks. वो कहते हैं कि yesterday is history, tomorrow is mystery, but today is a gift. That's why it is called a present. So all of the things like this, even Thanos ने जो बोला मैं उसको भी नोट करके and I've used that in my exam, in my paper. वो मतलब it gives a new angle to it and it makes your preparation fun. और एथिक्स आपको एक मौका मिलता है कि आप बहुत ही मोनोटोनस प्रिपरेशन से थोड़ा सा अलग जाके आप कुछ कर सकते हो। तो सर उसके अलावा तो यू हैव टू यू नो, जैसे एक फोन अगर हो मेरे पास तो आई गिव इट टू ममा कि आप कबर्ड में बंद कर दो चाहे जान पे आ जाए बाप। सोशलाइजेशन एक्चुअली आई विल टेल यू द प्लेस आई विल। सर अभी हम वी लिव इन अ विलेज, इट्स कॉल्ड चचानपेरी योर। तो सर वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन लगवाने में हमको 1 महीना लग गया। होते हैं जो आप कुछ भी कर लो एफर्ट डाल के आप तक पहुँचते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे नहीं हो, अगर आप किसी सोशल, वो मेल करेंगे आपको बट दे विल बी देयर फॉर यू। सो आई हैड 1 to 2 people like these and I thank God for those people. और ये लोग ऐसे होते हैं इनको हर चीज पता होती है एंड डिस्पाइट मतलब योर फेलियर योर सक्सेस दे आर देयर फॉर यू, यू आर एवरीथिंग टू देम। यू नो दीज पीपल काइंड ऑफ बूस्ट यू। ये जो आपने सोशलाइजेशन को बंद किया है उसको खत्म नहीं होने देते। एंड सर आई ऑल्सो टोल्ड यू वी वर अ फैमिली ऑफ 30, नाउ वी आर अ फैमिली ऑफ आई थिंक 11 people live together and I have 3 brothers living with me. That is a luxurious thing to say because you have that kind of time on your hands. हमेशा एक क्लॉक चलती रहती है कि आप अपनी ममा से बैठ के भी बात कर रहे हो तो उसमें क्लॉक टिक 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 करेगी कि टाइम जा रहा है अपना। तो सर वैसे तो फिर आपको एग्जाम डिमांड्स इट, यू हैव टू गिव इट टू द एग्जामिनेशन। सो दैट आई आल्सो डिड। So how was your interview? Tell me about that experience. So interview preparation was so first तो घर में ही पूरा प्रॉपर 5-6 चेयर्स लगा के यहाँ बैठ के पहले तो घर में इंटरव्यूज हुए हैं एंड ये बिना मतलब बिना डैफ के प्रेपरेशन के हुए कि जैसे ही रिजल्ट आया है कि इंटरव्यू क्लियर हुआ है वैसे ही ये स्टार्ट हुए हैं। तो सर इनिशियली आई फेस सम प्रॉब्लम्स लाइक language was fine but you know there's this pace that you talk with. Even now I'm talking very fast. I have a naturally fast pace but I had to tone it down because I used to speak very fast. I had to tone that one thing down. तो ये तो घर वालों ने ही करवा दिया था। My brothers, पापा, चाचा, even mummy used to sit there. She used to ask her questions in Hindi and everything. तो second thing was कि you need to give a proper pause. You need to show that you are thinking and answering. Third, you need to know how to end a sentence. ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी, मुझे सेंटेंस खत्म करना नहीं आता था। यू नो सेंटेंस खत्म हुआ और मैं देख रही हूँ कि ऑलराइट। तो ये सब इसमें भी अभी डैफ के प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुई है। ये वही प्रिपरेशन ये उसी के बेसिस पे हो रहा है जो आपको बोलना आता है और जो आपकी मेंस की तैयारी है। फिर इसी में ये था कि सर अब यहाँ रहते हैं तो दिल्ली में भी एक राउंड ऑफ मॉक्स होना चाहिए। तो एक बहुत ही बेसिक प्रेपरेशन करके, बहुत ही बेसिक मतलब जिसमें स्टेट्स वगैरह कवर नहीं हुए थे, कुछ भी बहुत ज़्यादा कवर नहीं हुआ था, कि एक राउंड दिल्ली का करके आते हैं जिसमें आई सैट फॉर आई थिंक 7 मॉक इंटरव्यूज, 6 to 7 मॉक इंटरव्यूज। कुछ बहुत अच्छे हुए, कुछ बहुत बुरे हुए, बट एट द एंड ऑफ ऑल द इंटरव्यूज पॉजिटिव कमेंट्स वर अ कांस्टेंट। तो मैंने सोचा कि अभी पूरी तैयारी नहीं हुई है, उसमें आई एम डूइंग ऑल राइट, आई एम डूइंग फाइन। तो उसमें मतलब फ्यू मेंशन संकल्प, बाजीरावन रेड्डी, बाजीरामन रवि, सो दे आर अ ग्रेट हेल्प। मतलब इनके IGPs बहुत अच्छे होते हैं एंड डिटेल्ड
डिस्क्रिप्शन दैट दे, एक्सप्लेनेशन दैट दे गिव यू कि यहाँ आप और इम्प्रूव कर सकते हो, यहाँ आपको बिल्कुल इम्प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, द वे यू लुक, द वे यू सिट, द वे यू टॉक, इट्स ऑल परफेक्ट, यू हैव टू इम्प्रूव ऑन योर कॉन्टेंट. So the most comments I got from there were just content based. मुझे पर्सनालिटी वाइज कोई कंटेंट नहीं, कोई भी सजेशन नहीं आया. तो दैट वाज वन ऑफ द कि मैं कंटेंट तो तैयार ही नहीं करके गई थी. तो दैट गिव मी अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस. फिर वापस आके कंटेंट बहुत ही एक्सटेंसिवली तैयार किया. राजस्थान छत्तीसगढ़ दोनों तैयार करने पड़े मुझे. राजस्थान जयपुर, छत्तीसगढ़ रायपुर, एंड देन हाँ, तो ये तैयार करना पड़ा. और इसमें देयर आर अदर थिंग्स कि डीबी गर्ल्स कॉलेज क्या है, कहाँ स्कूलिंग, तो आपको सबका पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, डीबी गर्ल्स कॉलेज उससे एफिलिएटेड है. पंडित रविशंकर कौन है? पंडित रविशंकर शुक्ला. तो you have to connect all the dots, and then you have to read on your hobby as well. You do all of those things. तो वो सब किया. तो इसमें बहुत, ये भी एक बहुत वो पीरियड होता है जिसमें you remember, you jot a lot of things down कि आप बहुत सारी चीजें याद करते हो, कोट्स याद करते हो to be able to speak, to be able to tell them their poems याद करते हो to be able to for the icing on the cake. Yeah, icing on the cake. तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन वैसा रहा. एंड माय एक्सपीरियंस एट द इंटरव्यू वाज आल्सो वेरी प्लेजेंट. लेकिन उसमें देयर वाज वन थिंग दैट कि ऐसा लगा कि यार ऐसा लगा कि तैयारी तो बहुत ज्यादा की थी. आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. कि आप जैसे स्कूल में होता था कि आप बहुत हार्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके गए हो लेकिन पेपर बहुत इजी आ गया. तो दे आस्क्ड मी वेरी, मतलब ग्रिल नहीं किया. Simple, they asked me simple questions and I answered them very nicely. मतलब I was really confident while answering them. By the end of it, I believe that I showed them that I had a positive, well-spoken, well-mannered personality and content was good as well. लेकिन वो जो ग्रिलिंग के लिए भी जो मैं तैयार होके गई थी वो नहीं मिली मुझे. तो was a little bit disappointed over that part. So you wanted that grill? I wanted that grill, because there's this perception that goes on कि ग्रिलिंग जहाँ ज्यादा होती है वहाँ उनको लगता है कि इसका पोटेंशियल भी ज्यादा है. जिसको उन्होंने इजी निकाल दिया, मतलब उनको लग रहा है कि पोटेंशियल कम है. तो दैट वाज इन माय हेड कि कहीं उनको ऐसा तो नहीं लगा कि मुझ में पोटेंशियल नहीं है. Because I'm prepared for everything. So this was your first interview? This was my first interview. You cracked it in this time? Yeah, this was my first interview. So, and tell me the atmosphere over there. Like कैसा रहता है, आप जाते हो, कौन क्या पूछता है, and it's basically what your DAF or your bio that you have presented, या फिर ऐसा रहता है कि जो पढ़े हो वही पूछेंगे आपसे? It differs. Some people say कि पूरा DAF based होता है, मेरा DAF based नहीं था. मतलब they ask me questions from current affairs. मतलब जो personalized questions जो होते हैं ना, जिनके लिए आप एकदम तैयार होके जाते हो, they didn't ask me a lot of personalized questions. मतलब not much from DAF. They asked me questions from generic perspective, like what's going on in our country, how is the economic, social, political situation of our country, how is India performing on an international level. Some question based on economics, properly content based. Then there were few questions based on Chhattisgarh. So and there were a few questions based on my hobby as well. So what had you mentioned? Running. I had mentioned Okay. running as my hobby. So what was the questions from there? There were technical questions. कि पहला question ये था कि till what age a person can run. So till the person lives, the person should be able to run. So there are certain pros and cons. There's certain things that you have to keep in mind to keep your knees safe. But there are many great examples where people are, old people are still running. Yeah. And then there was another question ki how the long distance training differs from the short distance training. Then the last question was very technical, which I had to say sorry to. It was कि क्या आपका, it was something technical कि कितने हार्ड प्रेशर पे आपको रुक जाना चाहिए, मतलब कितने WPM या WPM मैं बोल रही हूँ, कितने, I'm missing the exact term, पर
समझाए कब आपको रुक जाना चाहिए कि यू नो यू wear that watch चाहे you know the chairman told me about it, I have still forgotten it. But it was pleasant. It was a pleasant experience. But I wanted it to be a hard, you know, grilling experience, which was not the case. So I was a little कि मैं जो हूँ वो मैं दिखाने ये था कि I couldn't show the complete amplitude of my personality. It's a personality. And the marks that you got, you were satisfied with it, or I was not satisfied with. I got 175, and I was expecting very good marks. I was expecting somewhere around 190 and something. But 175 is also nice. Okay. So, but I was not satisfied with those marks. So. Okay. But then the way the interview went, the marks were perfect for that because you know it's true that the more you get grilled, the more they want to know about you, the more personality you will be able So to is show it them. true कि you can give direction to your interview? जो बोलते हैं या फिर वो सिर्फ लो लेवल पे ही चलता है? नहीं, we Like can. you leave a clue at the end of it कि हर एक आंसर के बाद कि I have studied in Raipur but I have many points regarding Raipur also कि यार ये सारी चीजें यहाँ पर कमजोर हैं. तो बस you end it there and they pick up that line कि हाँ क्या क्या लगता है आपको, क्या प्रॉब्लम है वहाँ? Yeah, so you can do that. I also did that to a certain extent, but you know boards differ. You know एक board था जिसमें they tell us, I was so jealous कि मुझे वो board नहीं मिला. उसमें you know it was so conversation like, it was so impromptu. एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन से तीसरा क्वेश्चन, एंड देन सर वो लास्ट में पूछते थे कि आप कुछ कहना चाहते हैं अपने तरफ से, आप कुछ बोलिए अपने तरफ से, कैसा लग रहा मॉक में कैसा लगा आपको. यू नो द क्वेश्चंस लाइक दोस, दे ब्रिंग योर रियल पर्सनालिटी आउट, दे ब्रिंग योर रियल स्ट्रगल आउट. सो आपको बहुत मौका मिलता है वो बताने का. माई बोर्ड वॉज ऑल्सो मतलब वो कॉन्वर्जेशनल लेवल पे था. I could pull them to a certain extent, but they had their questions, you know, set in their head, monotonous questions set in their head. तो वो पूछे गए मुझसे और उनका जवाब मैंने बहुत अच्छे से दिया. So and they were really happy with that. Even and it's a round table basically. वो यहाँ और यहाँ भी आपके yeah, it's like so that. Close. Yeah, so close. मतलब I was यहाँ पे वो Okay, if you member are थे. sitting here, तो यहाँ पर कोई रहेगा, वहाँ पर यहाँ पे round and round total कितने? I think 6 members were there. Six members were there. They are all from different genres. This or? I am not very aware of, but they must be. Mhm. So the one is chairman and the other people are members, UPSC members only. No, the chairman is the UPSC member and the other people, I'm not very sure Maybe about the... specialists Yeah. of I'm not very sure about the composition. But it's a proper round table conference. Proper round table type का होता है वो और बहुत ही... And you were prepared for that, ना? I was prepared for that. लेकिन उसमें थोड़ी एक मुश्किल चीज़ ये हो जाती है कि कोचिंग में जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो इस पैटर्न पे होते हैं तो वहाँ आप इजीली यू कैन नेविगेट, you can easily move your head, eye contact, you can maintain the eye contact. But इसमें जब आप इनसे बात कर रहे हो तो आप ऐसे करके नहीं उधर देख सकते हो, वो थोड़ा सा abnormal भी तो होगा. क्या करना रहता है, मतलब सिर्फ you'll be interacting with? उसमें बेसिकली ये होगा कि 70-30 प्रोपोर्शन की बात करते हैं, उसमें रेशियो की बात करते हैं उसमें कि 70% you will be 70% of the answer you will be addressing to the person who's asked you the question. Rest of it you जितना आपको मिले उसमें कुछ भी बॉडी लैंग्वेज में abnormal नहीं लगना चाहिए. बस that's the point. It should come naturally to you. If even moving gear comes naturally to you, you do that too. लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इधर मुड़ के इधर बताना, फिर इधर वाले बिल्कुल छूट जाएंगे. You can't do that. तो उसमें राउंड टेबल में वो थोड़ा सा एक अलग चीज होती है. उसमें वो मॉक्स में उतना नहीं होता है. मॉक्स में सीधे बैठते हैं प्रॉपर. Okay. So like we have covered almost many of the aspects. Pre-mains interview. We'll make a detailed video about your strategy with pre-mains interview also. But for this time's sake, I want you to tell us your secret
which you want to tell the students, like ये मेरा सीक्रेट रहा है, इस चीज़ को मैंने पकड़ा है, and this will help you throughout your journey for preparing for this UPSC? My secret. Your secret sauce, or you have seen that Kung Fu Panda, so Yeah, they yeah, say yeah. there's a secret ingredient. Secret ingredient. Look, this would be very generic, but I would add to it as well. Be the nanny cheaty that I talked about. Don't stop. That is the most important thing. You have to come back to reality as soon as you can. You know, you have to leave your troubles behind and give it all. Give it your all. Nanny cheaty matlab perseverance. That's perseverance we are talking about. Perseverance and hard work is a given. वो तो आपको करना ही है. But what अब उसमें the secret ingredient has been different in pre-mains. इंटरव्यू का तो the more you speak up, सबको अलग अलग तरीके का काम करना पड़ता है अपनी पर्सनालिटी के ऊपर इंटरव्यू में. Some people work with their speaking skills. Some people have to work with the way they sit. Some people have to work with the way they dress. Some people, it's all arbitrary. लेकिन pre और mains में, pre में my secret ingredient was solve as many papers as you can, and that thing that I told you that I did, इतने का आप इतना बना लो. I think ये जब मैंने स्टार्ट किया करना तभी मेरा प्री निकलना स्टार्ट हुआ. तो I think this is the reason why I got through pre. मतलब एक बार ही अपना बेस, एक बेसिक बेस बनाने के बाद कोई भी बुक से हो कुछ फर्क नहीं पड़ता. This is the thing which matters the most. No question solving. और इससे कहीं ना कहीं नहीं काफी सारे आपके करंट अफेयर्स भी कवर हो जाते हैं. प्री में दिस थिंग इज द वन. मेंस में यू हैव टू यू नो दो चीजें करनी है आपको. कंटेंट भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है. कुछ लोग अलग कर देते हैं इन चीजों को कि हम कंटेंट कर रहे हैं तो हम ये नहीं कर पा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं तो हम ये नहीं कर पा रहे हैं. वो नहीं करना है, उसको साथ में करना है. भले ही थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कुछ हो, तो दैट्स इट. मतलब यू हैव टू टेक बोथ ऑफ द थिंग्स हैंड इन हैंड, एंड दोज लिटिल डिटेल्स मेक इट यू नो परफेक्ट. द लिटिल डिटेल्स, कोई भी डिटेल अगर हो तो आप उसको छोड़ो मत. RBI पेटीएम इशू हुआ, you have to mention it in your mains, because it will somehow in the third paper it will somehow ask that question. मल्टीनेशनल पे कोई क्वेश्चन आया या फिर नई इमर्जिंग कंपनीज पे कोई क्वेश्चन आया, सो यू कैन राइट कि दिस इज हाउ गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ द थिंग्स दैट गोज ऑन इन द कमर्शियल स्फीयर इन आवर कंट्री. सो नो ऑल ऑफ दीज एग्जांपल्स, सो डोंट मिस आउट ऑन दीज लिटिल डिटेल्स. नोट्स them down, jot them down. फिर उसमें, और ये एक चीज हमने बात नहीं की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेंस में जो सिलेबस है उसका जो एक पॉइंट पे ज्यादा नहीं, आपके 2-2, 3-3 पेज होने चाहिए तैयार. 2-2, 3-3 पेज मेरे थे मेंस के लिए. जैसे एक टॉपिक जो है फर्स्ट टॉपिक हुआ, उसमें 1 पेज मेरा तैयार था. अब जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगी कि आप 2-2, 3-3 पेज करो. मैंने बाद में किया था, इसलिए आई हैड जस्ट द लिबर्टी टू डू दैट 1 पेज जिसमें मैंने पूरी कहानी लिख दी कि अब एनजीओ का एक जो टॉपिक है जिसमें सिर्फ एनजीओस की और सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात की है, तो उसमें आप बात करोगे, आप यू शुड हैव एग्जांपल्स ऑफ यू नो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, द कदम्बशी प्रोग्राम, द प्रथम एनजीओ दैट आई टॉक्ड अबाउट, द केरला इनिशिएटिव्स, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. वो नोटेड होना चाहिए आपको और वो रिपीट होना चाहिए बार बार. EGOV, जो भी ये सारे जो इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, प्रो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो लिए जाते हैं, एंड द गवर्नमेंट इज वर्किंग फिनोमिनली. सो वी नीड टू शो दैट यू नो जो ग्राउंड वर्क लेवल, उसको हमको देखना पड़ेगा और उसको हमको लिखना पड़ेगा. For this interview, we have covered mostly all the aspects, and Yeah. you have told your secret sauce also. And we have a pratha, you can say, you tagged another topper whom you know who can share their experience Sure, with us. sure. So you know anyone who you want Actually, to tag? there's this one very good thing that has happened to me. There, I met a very nice, beautiful girl in my medical. The medical next day, Seerat Baji is her Okay. name.
So of course she's in Kashmir, she won't be able to come here. So she is one of the persons that I know. Chhattisgarh में तो I don't think I know anybody. Chhattisgarh में there is nobody, but I'll find somebody. Okay, sure. But that one Till person then, is Seerat that one ma'am will be person back. is the one person I know. You can arrange an online thing with her. Okay, sure. I'll ask her if she is up for it. Whenever Very she is. pleasant personality. She is very inspirational. Okay. But she was in Jammu Kashmir Administrative Services before this, and then she got into civil services. Sure. So सीरत मैम, we are really happy to invite you कि आप आएँ और हम लोगों के साथ एक सेशन करें ताकि आपके जो सीक्रेट्स हैं वो हम लोग जान सकें, स्ट्रैटेजीज़ को जान सकें. एंड थैंक यू सो मच अगर आप टाइम दे सकें. And next we'll move on to I'll do a quick rapid fire round with you. Okay, that won't be very strategically, but I'll give you some questions. That is a rapid fire round, na? So Alright. the first thing that First thing that comes. you'll get, you need to answer it. Okay. So first is, अगर आपके सामने जिन आ जाए 3 विशेष आपको मिले तो आप क्या मांगेंगे? That is one question. It can't be in a rapid fire. All right. I'm so sorry. So this is the toughest question you can ask a person. The toughest question you can ask a person. There's certain things that I cannot even say. No, you might have thought something. Of course, I thought. You wanted to go somewhere. You wanted to buy something. You want to give someone. Yeah. So इसमें you have to be correct also, no? So it's a rapid fire round. It truly tells what you wanted from your inner self. Of course. So firstly, I would want to be very successful as an IS officer. I would like to work at a very good place where I get a lot of opportunity, to work for the ground level. Second, I want to be loved by people. I want to, मतलब वो अब मैं उनको जाके ढूंढूंगी that one janitor that I met, वो जो दीदी थी, वो मैं उनके लिए कुछ ऐसा करूँ, वो मेरे सर पे हाथ रख के बोले कि तुम मुझे याद हो, और वो बस खुश हों कि मैं जानती हूँ इनको. आशीर्वाद चाहिए बहुत सारा, I am very greedy. I am very hungry for that kind of love which you get from that. आप किसी ऐसे की मदद करो जिसकी किसी ने नहीं की, and the way they look at you, it's phenomenal. Okay, you have got And the third one, I don't want to disappoint my parents. I just want them to be proud of me throughout my life. Okay. So, And next question, अगर आप किसी पर्सनालिटी से मिल सकते जो इस दुनिया में नहीं है तो आप किन से मिलना चाहेंगे? जो इस दुनिया में नहीं है, there are lot many जिनसे आप personalities I बहुत can. इंस्पायर हुए होंगे पढ़ के, या ऐसा लगोगे यार एक बार इनसे मिलना है. These personalities like Subhash Chandra Bose and Bhagat Singh, they're मतलब when you read them, you would want to be in their presence and you would want to know कि what were they thinking, how did they think that, कैसे उन्होंने सोचा कि किसी दूसरे देश को मैं ले आऊंगा यहाँ पे, how, I mean how. Yeah, that is one question. And another from very different, there's this actor known as named Irfan Khan, who very unfortunately went early. मुझे मतलब I am not very fond of मतलब I'm not okay, oh I need a picture with you, but I wanted to meet him. I wanted to, because his work, the way he acts, it's something else. मतलब I was really, it's different. His personality was different. Yeah. So if he were alive, मैं उनसे जरूर मिलती, कैसे भी मिलती, मैं उनसे मिलती. अब तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिल भी सकती थी. तो that is one thing that I'm really sad about, कि उनसे मिलने की मुझे opportunity मिल सकती थी, पर वो अब नहीं मिल पाएगी. So I really wanted last question. Yes. What do you want to change in your past? अगर आप अपने पास्ट में जा सकते और उस चीज को चेंज करना चाहते हैं. I have a very rapid answer for that, and ये मैंने थोड़े ही दिन पहले ये देखा था.
अगर मैं अपने पास्ट में जाके कोई एक भी चीज चेंज कर दूं, एक भी चीज, आई वुड नॉट बी सिटिंग एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई एम सिटिंग हियर. Connecting the dots and everything. कनेक्ट एवरीथिंग लीड्स टू, ये जो मैंने 11th-12th में टीनेज फेज की बात की ना, उसमें काफी सारी चीजें ऐसी थी जो मैं सोचती थी कि यार मैं चेंज कर दूंगी, ये नहीं होना चाहिए, या फिर थिंग्स लाइक दोस. बट इफ आई चेंज इवन वन ऑफ दोज थिंग्स, आई वुड नॉट बी सिटिंग हियर, बिकॉज your past is a line which brings you to your present, and it will take you to your future. I would never want to touch my past, never. At this point, never, because everything teaches us everything, and I am not saying this just for saying it. मैं सच में I believe in this thing, कि मेरे पास्ट को कोई कुछ ना छेड़े. It should stay as it is. I'm really proud of everything that I went through, every person that I met, good, bad, every person that supported me in my journey, every mistake that I made, every exam that I failed, every exam that I passed. I'm happy, I am grateful for every part of that journey, every part of that journey. Great. बहुत अच्छे आंसर्स दिए आपने, एंड वी हैव अ गिफ्ट फॉर यू फॉर दिस, बट यू नीड टू क्लोज योर आइज. आप अपने आँख ऐसे चीटिंग, बिना चीटिंग के ऐसे करके, देन यू विल गेट इट. ओके, डू इट. प्लीज गिफ्ट देना. This is funny. Now you can open this. You'll have this straight to people. But this is, अब आपको आना है इसमें एक आध बार, बिल्कुल. This is a dream, you know. It's not just a toy. This is a dream. But I think they don't provide it right now. They but don't provide it these days. But ये सपना रहता है, वो फिल्में देखना, वो एक Ambassador was something which, बत्ती वाली ambassador. इनोवा तो अब सबके पास है. सबके पास है. हाँ. Exactly. But ये एक सपना है, इसलिए we give it to our toppers. Thank you so much. And so that you remember us. Thank you so much. कहीं भी जाए. I'll always keep it with me. Thank you so Wherever much. you go, बस रखें तो कभी देखे तो कोई पूछे वाह क्या है. Exactly. तो I mentors ज्ञान will. आया. It's beautiful. थैंक यू सो मच मैम अपना टाइम यहाँ देने के लिए. एंड आप सब लोगों के लिए कुछ और चीज़ें हैं, आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आए थे, तो वो एक अलग वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे. बहुत सारे डाउट्स पूछे थे कि कैसे इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं छोटे छोटे, हम लोग उसको भी अलग से एक बार और छोटा सा कवर कर लेंगे. बाकी अभी आप लोगों को भी वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड थैंक यू सो मच मैम कि आपने टाइम दिया. और Thanks to you that I got to tell my part of the story. Thank you. बाय बाय. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.